Cotton, I will say. Yes, आप शुरू करिए. So, good evening, all Good of evening, our. Dr. Deepak. Okay, good evening, all of our esteemed members of Delhi Homeopathic Medical Association. Myself, Dr. Shweta Singh, Vice President of DHMA, welcomes you all in today's webinar on behalf of DHMA family. As you all are aware, today is our 42nd webinar since lockdown, and we have with us very learned and enthusiastic speaker, my friend, Dr. Ishita Rajiguru from Mumbai. And she is a MD homeopath, has an experience of 11 years in dermatology as well as trichology, cosmetology, and aesthetics. So she has have been associated with many cosmetic clinics like Dr. Tarasi's Life Force Homeopathy Clinic, Aura Skin Clinic, Dr. Thin's Homeopathic Clinic, and she herself participated in PRP and stem cell research on skin and hair associated with Aura Skin Institute. She will be sharing with us today her experience on commonly encountered problem these days, that is hair fall. So let us welcome our esteemed speaker and let us learn from her the treatment for hair fall. Welcome, Dr. Ishita. Thank you so much, Dr. Shweta, for the wonderful introduction. First of all, I would like to wish you happy Teachers' Day to all of them. And specifically, I would like to devote and dedicate to Dr. Usha Guhya, my Masi, from whom I have learned everything, and Dr. Rajesh Shah. So that's a special devotion which I would like to have. Welcome, So Dr. let me Usha. just start. And your mother is also with us, right? Yes, Welcome, absolutely. Dr. Shweta, I wanted to share the screen, so if you can allow me. Yes. Now should I? Yes. Okay. Great. Is it clear? Yes. Okay, so let me start with hair fall. First of all, people say that hair fall, is it important to really even talk about it as a doctor, because it's not a life-threatening condition, or it's not something that, you know, we think that, okay, it's not something which will impact patient's life. But yes, it is very important. I have seen personally people losing their confidence, going in depression if they have hair issues. There are so many patients who suffer from many diseases because of which socially they are not accepted. There are young girls, due to XYZ reason, if they are suffering from previous diseases, they lose their confidence because of hair fall. So hair fall is the most awaited topic that I should be discussing right now. And all of here are mostly doctors. So in this webinar, I will be talking something which are not discussed very commonly. I will not be discussing hair fall because of stress or hair fall because of nutritional deficiency. That of course plays a very important role. But I shall discuss why hair fall happens due to very deep pathologies. So let me proceed. So first of all, we all know the normal anatomy of hair. We know there are three phases: anaphase, cataphase, telophase. So, you know, the growing phase, resting phase, and falling phase. So this is how every 21 days the hair regenerates and normal hair fall is there. So this anatomy is very crucial and important, because cata and telophase are basically the resting phases. What we are going to work on is the anagen or anaphase. That's the growth phase. So first of all, when a patient comes to us, we commonly miss out on the things that should be given the most importance. I specially make sure that I devote 5 minutes of my time to ensure that I find out the appropriate cause for that. I have listed down the entire details. I'll be discussing a few. For example, the male pattern, female pattern baldness, which is the most common baldness, and there is no cure, be it homeopathy, allopathy, or any pathy. It is a genetic predisposition which happens. There are various infections like folliculitis, because of which you start losing hair, or medications. If a patient is on contraceptive pills
or patient has had IVF treatments or has taken isotretinoin, retinoids, there is common cause of hair fall. Other causes are traction alopecia. If a person is habitual of tying very tight hairstyles, usually actress or young girls, or especially girls who do a lot of styling, a lot of gel application is there. And there is a very interesting case. I think every homeopath's favorite case would be trichotillomania to discuss, because this particularly provides that a patient who has had depression or has had panic attack, she starts pulling off her own hair. So this is very, very crucial cases to discuss, because even cosmetically she'll be depressed. It becomes a very vicious cycle. She's depressed, she pulls off her hair, she becomes more anxious, more depressed, and it continues. So even for the depression or psychological well-being, cosmetic or aesthetic well-being is very important. So radiation, when a cancer patient is there or pregnant woman is there. And other causes, alopecia areata, which is autoimmune condition. I'm not going in depth because I'm sure all our doctors and everybody understands the basic causes. Okay, so we can proceed. Yes, of course, we should not forget basic things like diabetes, which we usually ignore. If it's a diabetic patient, uncontrolled diabetes, and if he or she starts losing hair from a localized patch, or we think, okay, it might be something else. On the contrary, having worked for 11 years into skin, I feel the skin doctors are the doctors who can catch all type of diagnosis before other doctors do. Like very common thing like Schönberg's purpura, we catch hypertension is becoming malignant. So even before it manifests in the kidney, it starts showing first in the skin. So if you are careful enough. Now, in this webinar, I'll be discussing 3 common conditions. One is cancer chemotherapy and role of homeopathy for treating hair fall during such cases. Second topic would be my autoimmune condition and secondary autoimmune conditions. And primarily we'll be discussing nutritional deficiency and hair transplant and related to that. Okay, so we proceed with this. First of all, what are the chemotherapy agents? There are more than 100 chemotherapies. There are 7 basic chemotherapy or subtypes. So we are not going to discuss all of that because this is not a cancer webinar. I'll be discussing a very few drugs which cause major hair fall. One is alkylating agents. These are the drugs usually given to cancer patients or Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphoma, and also used in even testicular cancer. Now in hair fall also you see 2 variations. In certain cases, there is falling out of bunches of hair that happens. And in certain cases, the blood supply to the scalp, there is deficiency of blood components. As a result, the hair does not get proper nutrition. So there is thinning, brittleness, and as a result, the hair root dies off and the hair falls off. That is the 2 basic things. So I'll proceed. This is a very basic remedies or used remedies in which certain have affination towards scalp hair loss, certain have affination towards eyebrow and pubic hair loss. So there are various types of chemotherapy which affect. Now the anti-tumor. This is very, very important because when a patient comes to us for tumor, why this is an important thing, I'll tell you. Whenever there is tumor, usually if there is any radiation or any surgery which is involved, what usually happens is the area also becomes very tender, and if the patient has been operated, hair is basically the defense mechanism. So when we make sure that the patient has adequate hair after the surgery also, after the recovery, it provides an added protection towards the patient who has had chemo, becomes very sensitive towards light. That is my personal observation. They become very sensitive. They always have to wear cap, not just for cosmetic purpose, but hair, the basic protection is the basic principle of hair, which why God has given us hair as mammals, that everywhere where excess of protection is required, God has given us excess of hair. So this anti-tumor antibiotics cause hair loss. That is the reason, not just on the cosmetic purpose, but also medically, hair regrowth becomes beneficial to the patient for overall well-being. So we talk further. Now I'll go very slow in case if anybody has any doubts. Of course, you can discuss later or ask me later.
But if in case if you cannot understand or make out what I'm saying, or if I'm too fast, you can stop me and you can ask me the doubts. I'll be happy to clear that. First and foremost, we have to understand why chemotherapy causes hair loss. Cancer cells, cancer cells divide rapidly. So chemotherapy is basically designed so that any rapid division of cells, it starts destroying, which includes even hair follicles. Hair follicle usually, as we already discussed earlier, anaphase, cataphase, is a fast division. So apart from that, the blood components are the components which get affected, like neutrophils or basophils, lymphocytes, fibroblasts, osteoblasts. These are the basic blood components. Because of this affection, there is gastric mucosa और थ्रोट एंड you get all side effects के मुंह सूख जाता है. सिंपल चीजों में अगर हम बोले, पेशेंट आता है कि मुझे बहुत डायरिया हो गया, या पेशेंट आके हमें कहता है न्यूट्रोपीनिया हो गया, ग्राफी के इंजेक्शन हमें लेने पड़ रहे कीमो के बाद, इसके साइड इफेक्ट है. Rather than just studying the side effects, we have to understand the first basic pathology, what chemotherapy is doing to the body. So when these things are affected, what happens nowadays in US, UK, Canada, many places, they've started that they use pool caps. Whenever, what happens when the blood components, they become weak, neutropenia, or there is less oxygen in the RBCs, this blood, they avoid or they try to reduce the blood flow towards scalp, that they think after the chemotherapy is over, whatever residual chemotherapy effect is there, it should reach scalp minimum so that the hair root doesn't die. That is the basic thing. Now, post chemotherapy, first and foremost, any homeopath or allopath, they start focusing on basic hair growth. I do not believe in that, or rather, I tried doing that for 2 to 3 years, but it did not work. That got me into thinking that where am I going wrong? So I started reading about all this, that what exactly happens with chemotherapy. Then I realized that as a homeopath, we never treat disease alone. We treat entire individual, the whole body, as per our basic principle of homeopathy. So I thought that if these blood components become okay, I think the overall well-being of the patient also would become okay. It's a very common sense thing. So I started, and to my disbelief, it was really a very self-satisfying moment for me, wherein, I had a couple of initial patients. I implemented this principle with her doctrine of signature and materia medica, and I selected few drugs, which I'll be discussing in my next slide, that how I can, implement basic principles of homeopathy with the pathology which is going on after chemotherapy. Am I being clear, or am I going fast? Everybody can understand what I'm trying to explain? Yeah, you're fine. Fine, Yes, go ahead. Yeah, okay. So post chemotherapy, now how we can go for it? The conventional medicine, what is given, as I discussed, cold cap therapy. And after the chemotherapy is over, they give minoxidil, which is a very common drug. Minoxidil usually does a vasodilation, because of which when the blood becomes okay, it starts flowing back to the scalp. As a result, proper nutrition is given to the hair follicle and the hair grows. Simple. So this vasodilation can be done with homeopathy without side effects. And, we don't have to administer finasteride, which is a controversial drug, wherein it is said in certain dermats believe and certain say it is not true. I personally wouldn't opine on this particular thing, because I'm a homeopath. I would like to discuss about homeopathy only. It causes impotency. So I would say homeopathy does not have any such side effects. So we can think about that first in this case. So there are certain things which are good, that, you should not try to mismanage or mishandle the hair. You should be very gentle, no using the blow dry treatment or hair straighteners or any such chemicals. So yes. Now, this is a slide which I really wish to share. This is my personal observation. I could be partially wrong or right, or it depends. I think this is just the beginning. We as homeopaths can take this as further research. I have studied single component which gets affected with chemotherapy, and how homeopathically we can make it okay. Now, how to know what components are affected? It's a very basic CBC that we all can advise. So after that, if RBC is affected, the patient has anemia, patient who is undergoing chemotherapy, we can give ferrum group and arsenic. I'm so sure people have already given, and they must have taken into constitutions
I'm just breaking this down in what stages of chemotherapy, what needs to be given. So it usually increases the oxygen carrying capacity of RBC. So it can be given in any stage of chemotherapy, as I've written in my last column. Am I going in proper pace? Okay. So next we proceed to neutrophils. Neutrophils is the basic system which goes down. So whenever there is fighter or defense system which goes down, neutropenia is the most common side effect of any chemotherapy. So the drug which increases the count of neutrophils and which can also be given in patients who are undergoing stem cell therapy. These medicines are belladonna, ferrum-phos, Bryonia podophyllum. This can also be given in any sessions of chemotherapy. I have had so many patients for whom, you know, I've started even very low dose. And to be very honest, I have referred Banerjee protocols, that is Kolkata, very famous homeopath who has written even book. We all know about it. So he got me into thinking that, you know, chemotherapy should be, we should know exact what we can help, we cannot help. We should know our limitation and we should know our scope. So homeopathy is the best healer medicine compared to any other pathy. So we are just going to take advantage of that. Chemotherapy is usually doing destruction, and we are just going to ensure that without getting in way of chemotherapy, we can help the patient. So basophils, bone marrow usually gets affected. Whenever the patient starts having chemo, first, second session, third session, every session deteriorates the patient. So this usually there is obviously inflammation, and that is when usually the scalp starts getting inflamed, and the hair, sometimes the hair fall is even painful. I personally have spent over 1 to 1.5 years in cancer wards. Unfortunately, my father had suffered from cancer. That got me into thinking when I saw other patients in the wards. I was in Breach Candy, I was in Kokilaben in Mumbai. So that got me into thinking that even the patients who cannot survive or who can survive, cancer never leaves a patient in a pleasant state. So whatever maximum we can do in our capacity to help, be it allopath, be it homeopath, it's not a war. We should actually try to do what best we can give from both the pathways. So lymphocytes, this is a very important topic even in later where we discuss about autoimmune conditions. When a patient is usually even immunocompromised, at that time lymphocyte plays an important role. So when this becomes, this starts getting reduced, Phytoleuca and Thuja play a very important role. Thuja, the first line that we might have studied in Materia Medica, it's the life tree. Okay, so life tree, we're going to use it where the life matters the most. This usually is given. I in fact prefer Thuja in low potency doses from 2nd to 6th session of chemotherapy. And I have yielded not just hair fall or, retaining hair roots, even the other side effects, like even patient who's in distress for GI complaints, or there is esophagus which is burning, or there is GERD problem that is happening. So such problems also are helped by homeopathy with these basic medicines. Fibroblast happens at a very later stage. What happens is whenever there is radiation, which is localized, or chemo, the collagen, the skin also starts getting affected. Even if you are not a doctor, when you see somebody, you can make out that, okay, आज तो अच्छी नहीं लग रही, आज तो बीमार लग रही है. Basically, skin is what health we have inside. Skin and hair are the mirror of our health, which we have from inside. So when collagen starts getting affected, the basic remedy, it's a trauma. Chemotherapy is a trauma to the body. Even if it's helping reduce cancer cells, sanguinaria, arnica, they are very important remedies. Arnica, first thing for bruising we think is arnica. Arnica, calendula, these are the first line of treatment. But arnica being a little deeper medicine, I prefer first in radiation when there is epidermis, dermis and hypodermis getting affected. That time I go for calendula. This helps in forming collagen. So last but not least, osteoblast, when the bone formation is required. There are so many cancers related to bone. So calcarea, floor and rustrops, I think that is any homeopath's favorite whenever bone involvement is there. The first remedy, even before we open the repertory of Materia Medica, just to cross check that if we are right or wrong, the first remedy that crosses our mind whenever bone is involved is this medicine. So I have just done the very basic things of how homeopathy can actually help in such conditions.
I had patients who otherwise was better, and I gave them constitutional medicine also. Constitutional did help, but what happens is the constitutional itself gets totally impacted when chemotherapy is going on. जो पेशेंट के खुद के फिजिकल जनरल होते हैं, थर्स्ट होती है, वो सब उसका तो रहता ही नहीं, ये सारा कीमोथेरेपी है. मेनी डॉक्टर्स वुड आस्क मी दिस क्वेश्चन कि भाई हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्यों नहीं देते. हाँ, अगर पेशेंट कीमोथेरेपी पे नहीं है और सिर्फ कैंसर के लिए आपके पास आ रहा है और आपको लग रहा है कि आपके स्कोप में वो कैंसर ठीक करना, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दोगे तो वो बेनिफिशियल है. बट जब कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी इज अ ड्रग विच इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एंड पावरफुल पॉइजनस ड्रग टू द बॉडी, उसमें आप कॉन्स्टी दोगे दैट माइट नॉट वर्क, बिकॉज इसमें हमें कीमोथेरेपी को समझ के बॉडी की पैथोलॉजी के हिसाब से देना है. Many people, I had read a recent Australian website in which they had mentioned that homeopathy is divided into 4 types, which was very interesting. Actually, it is that homeopathy लोग जो है या एक क्लासिकल होम्योपैथ होते हैं, एक क्लिनिकल होम्योपैथ होते हैं. इन दोनों में क्या फर्क होता है? क्लासिकल में वो माइंड के रूब्रिक्स फोकस करेंगे, फिजिकल जनरल पर्टिकुलर लेंगे, रेपर्टरी लेंगे, एंड दे विल प्रिस्क्राइब. एंड व्हाट इज क्लिनिकल होम्योपैथी? क्लिनिकल होम्योपैथी इज you take the patient mentals, you take physical generals, you take as good as classical, but you do not ignore the diagnosis and you do not ignore the pathology part, because it is very, very crucial. Apart from this, just to explain my point, I'll give you one example. I'll give you a simple example. मेरे पास एक patient आई थी यहाँ पे, she had severe pain in one particular muscle, and किसी और डॉक्टर ने डायग्नोज किया था कॉस्टियोकॉन्ड्राइटिस है. तो वेरी सिंपल रेमेडी आ गई, कॉस्टियोकॉन्ड्राइटिस है. पेशेंट को हमने सबसे पहले डाल दिया आर्निका पे, ठीक नहीं हो रही है, 4 महीने हो गए. फिर हमने डाल दिया उसकी कॉन्स्टी पे, फिर भी ठीक नहीं हो रही है. दैट इज द टाइम आई गॉट हर इन्वेस्टिगेटेड एंड इट टर्न्ड आउट टू बी टेड्जे सिंड्रोम. टेड्जे सिंड्रोम इज अ ऑटोइम्यून कंडीशन विच अफेक्ट्स द कॉस्टियोकॉन्ड्रल मसल्स. तो जब मैं पैथोलॉजी ही उसकी गलत देख रही थी, तो मैं होम्योपैथी रेमेडी भी उसकी सही सिलेक्ट नहीं कर पा रही थी. So then I took into consideration जो autoimmune की हमारी पूरी प्रोफाइल होती है कि we go in depth about everything, the family genetics and everything. And कहीं चीज होती है जो patient if she is suffering for a very long time, वो जाने अनजाने में खुद भी भूल जाते हैं कि भाई हमारा ये symptom है. They become used to that life. So then literally we have to do the digging as homeopaths in chronic cases. That is why clinical homeopathy is important. One is complex homeopathy, which I personally do not understand very well, because I am a believer of one remedy and the result I get. But Dr. Prasantha Banerjee also commended, and in my practice also I've seen that whenever we have chemotherapy in cancer patient or any acute complex, prescriptions are usually required, and all homeopaths do give, but this is something nobody will actually say in a seminar. It's a controversial thing. And one is isopathy. Dr. Rajesh, he has been developing Nozode for COVID, which is very inspirational. I hope we can, see in the news very soon that what actually homeopathy can play a role in COVID-19. So progressing to this, I would say that when I see a cancer patient, I go for clinical method, which is classical homeopathy along with deep study of pathology. We do not have a choice. If we have the degree of doctor, we have to ensure that we are thorough with a Harrison. We cannot leave that out. So we'll study further. Radiation. When a patient comes, it's a localized atrophy which is going on. The hair roots are getting, and the skin is also getting affected with radiation. So tautopathy, everybody knows about that. So homeopathic X-ray usually helps a lot to relieve radiodermatitis. Apis mellica, if the patient tells you that, okay, my radiation is going to start, you can schedule Apis mellifica dose before the radiation day so that the inflammation can be curbed or controlled. And very, very, very important point, whenever a cancer patient comes to you, usually if a patient does not feel well, he or she starts having fever or they have symptoms, but in cancer patient, you do not get the symptoms that well because the patient cannot exhibit fever. So you have to take into consideration very common things like hypothermia. Usually अगर किसी को बुखार कम है, 92 डिग्री टेम्परेचर, हम उसको देखते ही नहीं कि हाँ बुखार नहीं है, बात खत्म. On the contrary, hyperthermia is not that dangerous जितना dangerous hypothermia होता है, because patient is going in shock.
तो whenever chemotherapy में patient ये मत सोचो कि होम्योपैथी रेमेडी दी है तो अभी कोई एग्रीवेशन नहीं हो रहा है. You have to be very very thorough with science. Always believe in checking. अगर पेशेंट कह रहा है कि मैं उसके घर पे हूँ, मैं आ नहीं सकता, ask for that particular area's photography. रेडिएशन हो रहा है, the skin is well preserved, not well preserved, पूरी abrasion हो गई है, क्या हुआ है, and calendula as we have already discussed. So now I'll discuss one of my case studies which I've had over here in the year 2018. Basically, I had a 42-year-old patient. ये patient मेरे पास आई थी अपने husband के साथ, and she was suffering from meningioma. Initially, I thought it's a benign thing, it's not cancer, it's non-cancerous. But to my disbelief, it was a typical meningioma, stage meningioma for, people who have to brush up for that. It is basically when a non-cancerous or benign tumor which starts behaving like cancer because of certain infiltration it has. So this patient had that. Her complaints had started 2 years back. उसे काफी headache होता था, 2 महीने से तो उसका इतना worse हो गया था. और आप बोलोगे in that case, आपने सीधी होम्योपैथी चालू करनी थी. But I couldn't do that because patient मेरे पास आई सर्जरी करवा के कि भाई डॉक्टर मैंने पीजीआई में सर्जरी करवा ली है और अब मैं आपके पास आ रही हूँ. After she has done so many patients, no, very rarely patient walks in the clinic at the right time. कितनी बार ऐसा होता है कि पेशेंट ने कुछ गड़बड़ कर ली होती है and then they walk in the clinic. Otherwise, we can advise them whatever we wish to. But patient ने surgery करवा ली थी and then she walked into the clinic. So what option I had left? The doctor had advised that she should go for chemotherapy and radiation. I cannot deny on that. If I do that, I'm risking her life. I'm risking so many things. And after surgery, which I would have told her had she come to me little earlier, but I just told her that, right now we can definitely help you. To best of my abilities, I'll try to help you. Her eyesight had got impacted. Whenever you are doing a surgery, the surgeon and the events that go in surgery are very unpredictable. That is why everyone takes the consent, because that is something nobody can predict. And it's not even the fault of surgeon. It is absolutely up to the case and their luck, I would say. So post-surgical and the meningioma margins were growing back again. तो ये meningioma margins जब grow हो रहे थे, chemotherapy और radiation patient को advise किया गया था. Patient के homeopathy wise मैंने mentals लिए. She was mother of 2 daughters. एक उसने बेचारी ने अपनी job छोड़ दी थी, काफी middle class की थी. She used to come to me from Ambala. I reside in Chandigarh, so she usually I get patients from around. And वो joint family में रहती थी, जहाँ बड़ा परिवार था, देवर देवरानी and 2 देवर वगैरह सब थे. And मेरे पास आई, पहले तो कुछ भी नहीं बोली. She was really so shocked that my life has just gone for a toss. And उसे पर्टिकुलर मैंने देखा कि फैमिली की काफी ये थी, मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं मर जाऊंगी तो उनका क्या होगा, which is very common thing, but she had anxiety a lot about that. So we'll proceed further. Her chemotherapy had started. Oncologist ने उनकी chemotherapy start की. And chemotherapy के बाद it was as predicted, hair fall वगैरह होने लगा. Now I would say every cancer patient is a warrior. If you're fighting cancer, I've had people in my family who have fought with cancer with good or bad prognosis. So, I personally know that battle. I am not a third party. I have lived that life. So I know and I can understand what they go through. But इसमें particularly ये होता है कि जब patient जो जिंदा रह जाता है, north side है या छोटे गांव है, वहां पे females are shamed as if they have done something wrong if their appearance gets disturbed. And ये अंबाला में रहती थी, जो कि काफी छोटी जगह है यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में. So what happened is her neighbors stopped talking to her. Her sister-in-law started taunting her कि you look like this. And she was very depressed. Already she was depressed because of her cancer. So she started getting further depressed with this. So the rubrics in this, I have used Murphy as my repertory. And the rubrics I have taken was tumor, chemotherapy poisoning. I have taken hair falling out. I have taken this, you might tell chemotherapy की side effect hair falling, but her chemotherapy hair fall नहीं करती. So that is the reason I've taken in this. And दो मैंने mentals लिए कि anxiety family about, and I have taken company desires. मैंने physical generals क्यों नहीं लिए? Because when chemotherapy हो रहे उसके general physical generals already alter हो चुके. I am prescribing in acute state. Chronic के patient की chemotherapy हो जाए, उसके बाद I can give the chronic remedy, homeopathy. But अभी मुझे acute के हिसाब से देना पड़ेगा, which can help.
So probable remedies I had were arsenic, kalika for, Silicea sepia. Remedy selected was arsenic because the repertorial totality was also major, and I gave 203 doses. Family को anxiety थी, indication था, tumor था, कोनायम, as I told you, अगर उसके ब्रेन में ट्यूमर होता तो कोनायम शायद मैं पहले सोचती, बट ऑलरेडी वो ट्यूमर एक्सट्रैक्ट करके आ चुकी थी मेरे पास, इसलिए कीमोथेरेपी. And now I'll explain you what I was explaining earlier about clinical homeopathy. So एक होता है homeopathy, Kent, BBCR और synthesis और all अपना homeopathy के हिसाब से हमने देखा, और arsenic आ रही है. And another reason why arsenic. So arsenic is globally infamous for inducing immunosuppression. This is the very reason usually allopaths are scared of homeopaths. We are misunderstood. Arsenic is a drug everybody fears, and it is right to fear. So what happens is arsenic is a poison. It usually affects or impairs the thymic development. Thymic is the gland which usually जो हमारा lymphocyte है या body के defense system है वो create करता है. Arsenic है वो उसके T cells CD8 4+ and CD8+ ये दोनों cells को भी suppress करता है. तो interferons है वो भी same ये चीजें कर रहे थे. As per law of similars, it is like cures like. कीमोथेरेपी पॉइजन है जो ये सारी चीजें कर रही है. आर्सेनिक दूसरा पॉइजन है, कहते हैं ना जहर जहर को काटता है. So similarly, but we are potentizing it and we are giving to the patient. So we are even, antidoting the side effects of chemotherapy. So I hope I'm clear with. जहां मैं अगर clinical homeopathy की बात कर रही हूँ, I am not encouraging, I am not divulging. It is in the principle of our organon. We are not divulging into any polypharmacy. We are going with much more thought and knowledge. हम तुक्का नहीं मार रहे कि हम ये देखे, क्योंकि कीमोथेरेपी वाले पेशेंट में रिएक्शन भी नहीं दिखाएंगे जो Ken's 12 ऑब्जर्वेशन है कि क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम सप्रेसेस, so they can't show a reaction. So that is why you have to be very accurate with your patho. So I had her in first follow-up. Her overall symptoms were normal. She used to report every 3 weeks because hair ki regeneration cycle is every 21 days usually. So I used to call her every 3 weeks. उसका 8th follow-up हुआ तब उसका कीमोथेरेपी यूजुअली खत्म हो गया था. टिल दैट टाइम मैंने एक्यूट के हिसाब से उसे कैलेंडुला प्रिस्क्राइब की थी एंड साथ साथ में मैंने उसे थूजा दी थी. एंड जब ये कीमोथेरेपी चल रही थी एंड आर्सेनिक आई स्टार्टेड गिविंग व्हेन कीमोथेरेपी साइड इफेक्ट स्टार्टेड किकिंग इन रियली बैड. उसका 13th फॉलोअप जब हुआ तब उसे बेबी डर्मास्कोप से मैंने देखा तो बेबी ब्रिटल हेयर उसे आने स्टार्ट हो गए थे, विच इज अ वेरी ब्रिटल हेयर आएंगे क्योंकि अभी उतना न्यूट्रिशियस है नहीं स्कार्ट. But this started happening. That was a sign that the hair root was not dead and overall health was also there. In 16th follow-up, she started having obviously little brittle and dry, but good hair growth. The photographs, I hope you can appreciate. So she definitely, after that also her overall symptoms gone down. If you have any doubts regarding cancer is such a huge topic. Actually, we can have another webinar for that, but I'll just stick to the hair fall as of now. I've just touched the cancer topic. We can discuss a lot. It's a huge, topic for research and ongoing. COVID has also, made us question many things about our medicine system. So definitely immune system and homeopathy can play a very important role. In Canada, they have doctors and they have clinics for homeoprophylaxis. Homeoprophylaxis means patient की पहले से वो constantly लेके रखते हैं और उनकी immune system पहले ही develop कर देते हैं, rather than बीमार होने के बाद उनको देना. So this is the trend which is starting over there. Now the second topic I'll discuss is homeopathy versus conventional medicine in autoimmune conditions. So first we discussed about chemotherapy, cancer, and now second is autoimmune conditions. So first of all, what is autoimmunity? Autoimmune system मतलब जो हमारी body है, वो हमारी healthy cells को attack करना जब शुरू कर देती है, तभी it is an unintelligent response by body. It causes destruction. So practically patient आके कहते हैं कि ये आप पूरा kill कर दोगे. You cannot kill somebody's immune system or immunity. इसमें अगर कोई पेशेंट को ऑटोइम्यून कंडीशन है तो वो रेमिशन में जाती है, वो शांत होती है, बट इट मे कम अप अगेन. तो ऑटोइम्यून सिस्टम में क्या होता है, देयर आर मेनी वायरल इन्फेक्शन और स्ट्रेस फैक्टर्स और बैक्टीरिया विच कॉजेज ऑटो एंटीजेंस.
तो हेयर फॉलिकल को वो खुद अटैक करना स्टार्ट करती है, जिसको हम स्वार्म ऑफ बीज बोलते हैं, इफ यू स्टडी इन योर बेसिक माइक्रोबायोलॉजी. एंड एज अ रिजल्ट एलोपेशिया एरियाटा इज स्टार्टेड. Alopecia के types I'm not going to discuss because we all are aware, we must have treated hundreds of patients about that. So all our doctors, I'm not discussing the common things. Alopecia areata, totalis, universalis. Now this is very important. Causes again everywhere. कुछ चीज का अगर cause मिल जाए तो ही उस चीज का आगे आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं. If you don't know what you are treating, you cannot treat that. It is a very simple concept which is fitted in my head. So very basic thing is there that, you know, first of all hormonal. कोई भी पेशेंट आपके पास एज अ होम्योपैथ, सबसे पहले पीसीओडी तो हम लोगों ने मतलब मास्टरी कर ली है कि पीसीओडी वाली पेशेंट हेयरफॉल के साथ आएगी, वो तो हमें ठीक करके ही भेजनी है. सिस्टमिक इलनेस है, अगर कोई पेशेंट है जिसको पहले कोई सिस्टमिक इलनेस साथ में रह चुकी है ना, बीट एनी कंडीशन, ड्रग्स है, डिस्कस कीमोथेरेपी, आइसोट्रेटिनोइन, मेनी अदर ड्रग्स, स्ट्रेस वी ऑल नो एंड वी मस्ट हैव डन सो मेनी. वो तो आते जाते हम शायद सबसे पहले होम्योपैथी बीएचएमएस पास आउट करने के बाद पहली स्ट्रेस के साथ हेयरफॉल ही शायद हमने शुरू किया था जब हमने पहले अपने पेशेंट्स लिए होंगे. जेनेटिक टेंडेंसीज, मेल पैटर्न, फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, लोकल स्किन डिसऑर्डर. इफ अ पेशेंट इज हैविंग लाइकन स्क्लेरोसिस और लाइकन प्लैनस, एनी अदर स्किन कंडीशन या सोरियासिस है, तो ऑटोमेटिक उसमें हेयर लॉस होना स्टार्ट होता है पोस्ट एनी एक्यूट इलनेस लाइक टाइफॉइड और हेपेटाइटिस. एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, अगर कोई पेशेंट है वो वैसे ही अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है उससे. तो पैटर्न ऑफ एलोपेशिया, ये बहुत जरूरी है जानना. प्राइमरी एलोपेशिया है और सेकेंडरी एलोपेशिया है. इस दोनों में फर्क क्या है? प्राइमरी एलोपेशिया बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो हेयर फॉलिकल को अटैक करी, दैट इज प्राइमरी एलोपेशिया. सेकेंडरी इज कि कोई और ऑटोइम्यून बीमारी शरीर में है जिसकी वजह से हेयरफॉल एक और साइड इफेक्ट है. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट को SLE, ल्यूपस का कोई पेशेंट है, उसको साथ में हेयर लॉस भी हो रहा है, या फॉर एग्जाम्पल किसी पेशेंट का जस्ट टोल्ड यू सोरियासिस है, लाइकन प्लैनस है और सेकेंडरी हेयर फॉल हो रहा है, दैट इज द डिफरेंस. अगेन व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड? बिकॉज इफ यू डोंट नो योर पैथोलॉजी, इफ यू डोंट नो योर कॉज, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट. वो तुक्का हो जाता है. इट इज नॉट अ प्रॉपर साइंटिफिक प्रिस्क्रिप्शन दैट यू आर गिविंग. So these are couple of diseases which are mentioned, systemic and cutaneous. You can just go through that. मैं इन दोनों में से एक एक एग्जाम्पल के केस स्टडी जो मेरे पेशेंट्स है उनके मैं डिस्कस करूंगी फॉर फर्दर. स्किन के रिलेटेड है, यू नो, एटोपिक डर्मेटाइटिस और मॉर्फिया और विटिलिगो एक्सेट्रा. एंड सिस्टमिक में हो गया जैसे थायराइड की कंडीशंस होती है या पर्नीशियस एनीमिया होता है, मेनी अदर. अभी एलोपैथी की क्या दवाई होती है इसमें? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स एंड इम्यूनोसप्रेसेंट. कुछ जगह पे मैंने खुद कहा कि कोई पेशेंट अगर कीमोथेरेपी ले रहा है तो हम उसमें मना नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए. इन माय ओपिनियन, इफ यू आर एक्चुअली, फॉर मी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाउ मच आई कैन बेनिफिट द पेशेंट रादर देन माई ईगो. जहां डॉक्टर की ईगो ज्यादा बड़ी हो जाती है वहां पेशेंट की वेलबींग कम हो जाती है. दैट इज माई पर्सनल लर्निंग दैट आई हैव लर्नड इन दिस ईयर्स. तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड या मिथोट्रेक्सेट है, इट इज अदरवाइज लाइफ सेविंग ड्रग्स, बट यहाँ पे ऑटो इम्यून कंडीशन में आप इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहे हो, विच इज रियली नॉट रिक्वायर्ड. होम्योपैथी कैन प्ले अ वेरी मेजर रोल इन ऑटो इम्यून एंड एनी immunity related conditions. So homeopathy treats person as a whole. ये हम सारे जानते हैं. Autoimmune में we are going to take entire body into focus. The family history, past history, the susceptibility, the predisposition, the disease, bacteria, virus, everything. Okay. So I'll jump to my case. The reason I'm not discussing alopecia is because we are already aware about that. ये webinar में I'm just trying to cover जो चीजें हमें यूजुअली इतनी फ्रीक्वेंटली डिस्कस नहीं की जाती. तो मेरे पास एक पेशेंट यहाँ आई थी, लुधियाना से आई थी, एंड शी हैड मॉर्फिया. 12 साल की लड़की थी एंड शी हैड टेकन सो मेनी ट्रीटमेंट फॉर दैट. मेरे पास वो पहले काफी लेती थी फॉर एलर्जिक राइनाइटिस, मामूली सी दवाई उसने ली होगी. एंड आफ्टर दैट शी हैड विजिटेड आफ्टर लॉन्ग टाइम कि भाई ये पैच बन रहा है. एंड प्रॉपर वो लुधियाना से चंडीगढ़ आई थी एंड यू नो शी हैड प्रॉपरली डन हर बायोप्सी. मॉर्फिया डायग्नोस किया गया था. एलोपैथ से बोल दिया था कि भाई ये कुछ नहीं हो सकता, ऑटोइम्यून के कारण ये फाइब्रोस हो रहे, कोलाजन फॉर्मेशन ज्यादा बन रहा है, तो ये इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आप स्टेरॉइड वगैरह लगाओ, दैट इज द ओनली ऑप्शन वी हैव. तो बहुत सारी उसने ट्रीटमेंट की एंड फादर वाज वेरी वरिड बिकॉज ऑब्वियसली ये सब में स्किन अफेक्ट होती है एंड उसको बैक में था ये. एंड इट वॉज ग्रोइंग. इनिशियली इट वॉज हार्डली 1 centimeter एंड इट हैड ग्रोन टू 4 inches. वेरी शॉर्ट स्पैन. तो पेशेंट वॉज यूजुअली पेशेंट हमारे पास आते हैं
तो पेशेंट आके बैठे होते, 12 साल के बच्चे इतने एप्रीहेंसिव या कुछ नहीं होते। इसमें फादर ने मुझे दूर से इशारा किया कि इसके सामने कुछ डिस्कस मत करना, ये बहुत सेंसिटिव है, ये चीजों को दिल पे लगा लेती है। तो एक तरफ से हमारा दूसरा पैथोलॉजी वाला माइंड चल रहा है, एक तरफ से होम्योपैथी वाला माइंड भी चल रहा है। तो इन दिस शी हैड स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग जस्ट 8 months बैक। आई कुड नॉट डिस्कस एनीथिंग। जब मैंने पेशेंट को इनफैक्ट चेक भी किया, शी वाज सो दिस थिंग, शी स्टार्टेड आस्किंग मी, गंदी लग रही है ना मेरी स्किन डॉक्टर? आई वाज लाइक, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल सा दाग है, ये तो अभी मैं आपको दवाई दूंगी और ठीक हो जाएगा। So this were the impressions. And then when I took the history, her father was diabetic and mother was suffering from hypothyroidism. So family already had autoimmune conditions present in the family. So मैंने इसमें totality ली morphia. The repertory which I have used in this was complete repertory. The reason I am exhibiting different repertories is to show कि हर एक में we have to choose as per the case. कैंसर का केस ऐसा नहीं, ये कोई और में नहीं हो सकती, सिंथेसिस में नहीं हो सकती या मर्फी में नहीं हो सकती, बट इफ यू आर थरो विथ योर रेपर्टरीज, फॉर यू यूजिंग एंड चूजिंग और द करेक्ट रेपर्टरी मेक्स द जॉब वेरी इजी फॉर यू। आई यूजुअली डू इट विथ वन रेपर्टरी एंड आई क्रॉस चेक विथ अदर रेपर्टरी। तो मेरा क्रॉस रेफरेंस मैं हमेशा यूजुअली करती हूँ। Morphia, second I took autoimmune, third I took, she was very sensitive, fourth puberty during girls, and then I took food and drinks, food amelioration. So now the remedy which I got was phosphorus. I was very happy कि proper remedy आ गई है ना, 17 में से 5 ये है, सारे कुछ अब cover कर रहे। Now this is the case, if I show in my webinar कि भाई एक patient आई, एक dose दिया, सब ठीक हो गया, I would not like, I like to have real discussions rather than just superficial. I like to have discussions जो actually clinic में हुआ है, which becomes a learning point. अगर मैंने कुछ गलती भी किया, I like to discuss that so that if मैंने गलती की है, even उससे भी मुझे कुछ सीखने मिलता है, in my opinion. So first follow up आया, no change was there. Condition was still progressing but mildly. Second follow up आया, every 2 months follow up आ रहा था. The patch had stopped progressing but इतना ज्यादा improvement नहीं था. फिर third follow up मैंने जल्दी बुलाया and I thought I'll reevaluated the case. I retook the case as what we usually do. वो phos ही आ रही थी. So I repeated phosphorus 1 dose after careful consideration. In fourth follow-up, this is very, very interesting that we'll get. This is where I was talking that classical and clinical homeopathy. I gave somatotropin 30, just 1 dose. And how I give you, I'll explain that to you later. ये मैंने दिया and patient का patch है वो next follow-up में हल्का सा soft हो गया. And patient उसके बाद आने शुरू हो गई, तो patch had started decreasing and it had become from 4 inch to 2 inch. उसमें यहाँ तक कि जो periphery की skin थी, उसमें बेबी हेयर भी आने लग गए. She took treatment at least for 1/4 to 2 years and I think still she is undergoing treatment. We are just keeping her under careful observation. अब somatotropin मैंने क्यों ली? Again the same principle I'm going to apply. Somatotropin basically growth hormone होता है which is secreted from anterior pituitary, and this pituitary gland usually secretes somatotropin for any regeneration of cells or growth hormones or regeneration of collagen. इसमें क्या हो रहा है? मॉर्फिया की पैथोलॉजी क्या है? मॉर्फिया की पैथोलॉजी कोलेजन का एग्रीगेशन एक्सेस हो जाता है बिकॉज ऑफ विच स्किन लेदरी हार्डनिंग हो जाती है. So again we are going to apply law of similar curanter, and that is why somatotropin works so beautifully. So in deep pathology, sometimes just sticking to very basic classical may not yield result. I'm not saying in all cases, but अगर कोई डॉक्टर मुझे कहता है कि हर क्रॉनिक केस ऐसा होता है कि एक डोज दिया और ठीक हो गया, I am not ready to believe. If you are practicing, you know that chronic cases में there are many follow-ups. Patient काफी दुखी होके जाता है, गालियां देके जाता है, and you arrive to a remedy. So ultimately, then she was treated, and I had explained to her, very important. No doctor should say that ये हम cure कर देंगे when they cannot. I told her that I'll be able to help you stop the further progression. I'll be able to help you in making sure that जितना possible 20, 30, 40, 50 depending on individual case मैं ठीक कर पाऊंगी. I said I cannot cure you. I will not be able to promise you a cure. This is very, very, very important. If you give such commitments to patient that you can cure them, the patient will get disheartened. On the contrary, if you're very realistic, what you can and cannot do, that is very important. That is why I say that proper knowledge is very essential. This is the photo. This is the 4-inch patch which he had on back.
and it was reduced. In between also, she started getting normal skin. And her hair roots also, I'm sorry for the quality, but this is the best I could retrieve right now. So, and after that, very basic hypothyroidism की वजह से जब alopecia होता है. When I was working, and I was very lucky to meet good doctors in my life, Dr. Rajesh Shah being one of them. मैं Life Force Santa Cruz branch में थी, and at that time this patient had visited me. उसे hypothyroidism की problem थी. She had basically been taking treatment for 3 years on and off, but उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. So I'll just make sure that you can see the video. Dr. Shweta, just let me know if the video and audio is visible. मेरा नाम उषा शुक्ला है. 2010 में मेरे सर पे छोटे छोटे पैचेस आए, तो मैंने सोचा कि कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही कुछ हो गया है मुझे. लेकिन 1 महीने बाद मैंने देखा तो वो बड़े बड़े पैचेस हो गए. फिर मैंने जो है बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन वो ने क्या बोलूँ, वो ठीक नहीं हुआ. उसके बाद फिर जो है मैं एक डॉक्टर स्किन स्पेशलिस्ट थे, सबने कहा उनको प्रेफर करो, जाके उनको बोलो कि वो जो है देखते हैं, वो ठीक कर सकते हैं. मैं गई, मैंने बहुत सारे पैसे खर्च किए, जितना मैं दे नहीं सकती थी. उसके बाद जो है मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने फ़ीस भी अच्छी ली. फिर उसके बाद उन्होंने देखा तो उन्होंने एक कुछ दवा लगाने के लिए मुझको दिया. मैंने लगाया 2 महीने में वो वापस रिकवर हो गया. लेकिन पिछले साल 2 साल पहले मुझे वापस ये प्रॉब्लम आई. पता नहीं क्यों आई, मुझे नहीं मालूम, वापस आई. मैंने सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, दोबारा ये नहीं होगा, लेकिन ये दोबारा वापस हुआ. तो मैंने कहा अभी छोटा है, देखते हैं. फिर मैंने उन डॉक्टर के पास गई, उन डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, बोले ये मैं ठीक नहीं कर सकता. मुझे बहुत तकलीफ़ हुई ये सुन के कि ये ठीक नहीं होगा. उसके बाद मैंने दूसरे डॉक्टर से फिर मैंने कहा ठीक है, वो डॉक्टर ठीक है, उनको नहीं दिखाया. मैंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया. मुझे होम्योपैथी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था. मुझे ये मालूम था कि हाँ तो होम्योपैथी का इलाज होता है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि होम्योपैथी से ये इलाज भी हो सकता है. उसके बाद मैंने एक और डॉक्टर को दिखाया, वो भी स्किन स्पेशलिस्ट थे. उन्होंने भी मुझे दवा दी, वो भी एक एस्ट्रॉइड थी. मुझे दवाई दिया, बहुत जलन होता था, मैं उसे लगाती थी स्कैल्प पर, बहुत जलन. वो 2-3 बूंद लगाते थे, आँख से आंसू जैसे गिरने लगे, इतना दर्द मुझे होता था. उसके बाद मैंने सोचा शायद यही मेरी ज़िंदगी है, मेरे बाल पूरे. फिर डॉक्टर ने मुझे क्या कहा कि तुम्हारे सारे के सारे बाल निकल जाएंगे. क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस की मैं बहुत कमी आ गई, इतनी कमी आ गई कि मैं क्या बोलूँ. उसके बाद फिर मैं एक दिन यहाँ, मेरा घर क्या है हॉस्पिटल के इस हॉस्पिटल के बहुत बाजू में है. मैं वहाँ से आ रही थी तो मैंने देखा कि लाइफ फोर्स का ऊपर नाम था. मैं यूं ही सड़क पे खड़ी होकर उसे पढ़ रही थी, तो मैंने देखा एलोपेशिया एरिएटा का इसमें इलाज होता है. तो डॉक्टर राजेश शाह का मैंने नाम देखा. मैंने सोचा चलो देखते हैं, ट्राई करके. इतना तो मैंने ट्राई किया, होम्योपैथी क्यों ना ट्राई करें, एलोपैथी तो बहुत ट्राई किया. उसके बाद मैं क्लिनिक में आई तो उन्होंने पहले तो मुझे डॉक्टर ने पूरा का पूरा, डॉक्टर इशिता मैम, पूरा का पूरा उन्होंने मुझसे पूरा पूछा. मैंने सब कुछ उनको बताया. मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि अब क्या होगा. उन्होंने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा जो पैच है बढ़ते बढ़ते पूरे सर के बाल निकल जाएंगे, आईब्रोज निकल जाएंगे, पूरे हेयर निकल जाएंगे. मैं एकदम से घबरा के मैंने कहा कि शायद ये बीमारी में ऐसा होता है. लेकिन उन्होंने ये भी मुझे कहा कि नहीं, ये ठीक भी हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत छोटी मात्रा में ये ठीक हो सकता है. होम्योपैथी में ऐसा है कि ये ठीक हो सकता है. और उन्होंने मुझे ना दवाई चालू किया, होम्योपैथी दवा. मैंने खाया, मैंने सारा टेंशन छोड़ दिया और ये धीरे धीरे करके ठीक हो गया है. मैं कह सकती कि मैं ठीक हूँ. मेरे बाल आ गए, मेरे अंदर फिर से उतना कॉन्फिडेंस आ गया जैसा मैं चाहती थी. मैं ठीक हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं देखने में भी अच्छी लग रही हूँ, जैसे सब लगते हैं अच्छे देखने में. थैंक यू. So this I'm not going to discuss because it was a very simple case. This case is very close to my heart because this was my first alopecia case, and this is where I started developing interest. I mean, it was amazing experience learning with Dr. Rajesh Shah. He's an amazing teacher, I would say. So this is, I have used synthesis repertory in this. First, I used Morphe. Second time, it was complete. This was synthesis. I've intentionally used different repertories to show you the variation. So Natromule, and this is the pictures. The patient who had come to me, she
was really happy after just 4 months of treatment, and it was just 1 dose of Netromure and she was completely okay. Now we have discussed the autoimmune condition. The most controversial topic, which I would say, is hair transplant. Now, living in the city called Chandigarh, you will be surprised to know that Chandigarh is called as hub of hair transplant. So, you know, when I came to Chandigarh, that is the time I started having so many cases. लोग पूरे इंडिया से कहाँ से आते थे यहाँ पे स्पेसिफिकली हेयर ट्रांसप्लांट करवाने. नॉट दैट अदर जगह है नहीं, पर यहाँ काफी रीजनेबल है, हर तरह से ठीक है. यहाँ पे कितने क्लिनिक्स है. I was lucky enough to get associated with Aura Skin Institute with Dr. Suruchi Garg. So over there, I participated in one of the research for PRP and hair transplant because I've been always interested. For me, it is very important कि मैं सारी चीज जानूं and then I should have to have a conclusion. So usually what is PRP? Patient का ही blood लिया जाता है, उसको centrifuge किया जाता है, and जो platelet rich plasma, platelet is the natural healing property, वो पेशेंट के वीक एरियाज में स्काल्प में इंजेक्ट करते हैं. तो सिंपल थिंग. ओके, तो इसमें थोड़ा रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं बिकॉज ये खुद का पेशेंट का ब्लड है, तो पेशेंट डज नॉट रिएक्ट टू हिज ओन ब्लड. बट it is a controversial thing. I will not recommend any of this treatment to a cancer patient. When a cancer patient will ask you कि PRP stem cell करवा, your answer, even if you are very knowledgeable, your answer should be they should ask or consult their oncologist. So cancer में क्योंकि platelet rich plasma, it's a controversial. FDA अभी भी they have not given a proper answer to that. That certain times the PRP in cancer patient can trigger new tumor growth. So it is not proven yet, but I have read such studies. So we go to stem cells. I'll explain you the difference also. Stem cell is usually of two types, embryonic stem cell and adult stem cell. Stem cell जैसे liver का हो गया, तो liver regenerate करने के लिए stem cell है. Stem cell और PRP में basic फर्क क्या, अगर मैं simple भाषा में आपको समझाऊं. PRP में आप immune system को boost कर रहे हो patient की, है ना, कि पेशेंट की जो हीलिंग नेचुरली 2 महीने बाद होनी है वो आप थोड़ी रैपिड आउट कर रहे हो. एंड स्टेम सेल क्या है? इट इज अ सेल को हम रीजनरेट कर रहे हैं. अगर वो लिवर का है तो लिवर रीजनरेट हो रहा है. तो दिस इज द स्टेम सेल. कहीं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल होता है. आजकल जब भी कोई औरत डिलीवरी करती है तो भी यह होता है कि भाई उसको बोलते हैं कि हम आपका अम्बिलिकल कॉर्ड या जो भी है वो प्रिजर्व कर ले, प्लासेंटा का टुकड़ा प्रिजर्व कर ले फॉर स्टेम सेल. सो दिस इज द डिफरेंस. एंड इसमें सबसे मेन टाइप पेशेंट हमारे पास आता है, हाउ टू पिक कि कौन से पेशेंट को क्या देना है. पेशेंट हु आर हैविंग मेल पैटर्न बाल्डनेस, उनके हेयर रूट्स ही मर जाते हैं. सो इन दैट केस जब हेयर रूट्स नहीं है, यू नो होम्योपैथी, नो एलोपैथी, नथिंग कैन डू. अगर अंदर बीज होगा तो पौधा उगेगा. सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, अगर अंदर बीज ही नहीं है तो पौधा कहाँ से उगेगा? सो फॉर दैट वेयर टू सिलेक्ट दैट वेयर द पेशेंट रिक्वायर्स PRP, स्टेम सेल सिर्फ होम्योपैथी से चल जाएगा या हेयर ट्रांसप्लांट चाहिए. तो टाइप 1 अगर है पेशेंट तो यू कैन जस्ट मैनेज विद डाइट. आई विल कम टू डाइट लेटर. डाइट प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन दिस. टाइप 2 वाले पेशेंट आए, एज यू कैन सी देयर इज अ रिसीडिंग हेयर लाइन फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द टेम्पल. इन दिस यू हैव टू प्रॉमिस द पेशेंट कि हम जितने बाल बचे हैं उनको होम्योपैथी से बचाने की कोशिश कर सकते हैं. जो ऑलरेडी चले गए उसका हम कुछ नहीं कर सकते. ओके. Type 3, it just increases. When the patient is reaching to type 3 and type 4, that is where PRP and stem cell are usually helpful. Along with this, if you have thorough knowledge, then you can give homeopathy. Homeopathy में thorough knowledge होने की जरूरत क्यों? Because if a PRP is given और उस टाइम पे आपने पेशेंट को सल्फर दे दी तो इनफैक्ट बोथ विल कॉन्ट्राडिक्ट. हम बोलते हैं होम्योपैथी के साइड इफेक्ट्स नहीं है. एनीथिंग विच हैज अ इफेक्ट हैज अ साइड इफेक्ट. PRP जैसी सेंसिटिव चीजों में जब हम दे रहे हैं, दैट टाइम वी हैव टू बी वेरी वेरी श्योर. हमें भी पता है कि कुछ प्रेग्नेंट लेडीज होती है, उनको हम कुछ ड्रग्स होम्योपैथी की नहीं देते, कुछ देते हैं. होम्योपैथी डज नॉट हैव परमानेंट डैमेज, लाइक इट कैन नॉट डैमेज अ किडनी और लिवर. But when we say homeopathy के side effects, those are innocent side effects which are very much reversible. आप समझ लो, ऐसा नहीं है कि उसकी कोई साइड इफेक्ट ही नहीं है. इट हैज अ इफेक्ट, इट हैज अ साइड इफेक्ट. बट कोई भी ऐसी नहीं है कि होम्योपैथी की मैं दवाई खा रही थी और मेरी किडनी फेल हो गई. ऐसा कभी नहीं हो सकता. दैट इज अ ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी बिकॉज दी पोटेंटाइज ऑन एवोगैड्रो नंबर के ऊपर जाता है. सो वी जस्ट हैव थेराप्यूटिक वैल्यू फॉर दैट. व्हेन पेशेंट रीचेस टू टाइप 5, दैट इज वेयर वी हैव टू कंसिडर hair transplant.
hair transplant if the patient wants it, or you have to be very realistic of what you can provide. You can just maintain the hair which are left. You cannot regrow the dead cells. Any tissue which is dead, degeneration has happened. The cells are dead, you can't do anything. So I never give any fake promises to my patient. Type 6, 7 definite. In fact, type 7 जो है, इन उसमें तो कहीं बार body के hair लेने पड़ते हैं just to do the transplant. So that is the level. इसमें patient को 2 session लगते हैं because at one time you can only do 3000 grafts of hair transplant. उससे ऊपर time जो लगता है तो body उतना anesthesia tolerate नहीं कर पाता. 180 cc से ऊपर anesthesia body में administer करो. यहाँ लुधियाना में एक केस हुआ था मेरे पास. The patient had visited after the side effect had happened in my homeopathic clinic. So किसी technician ने किया होगा. This is very important. If you are doing a hair transplant, do with a proper licensed doctor. Do with a proper dermatologist. Don't do with technician. थोड़े पैसे बचाने जाओगे लंबा चक्कर पड़ेगा. I tell every patient this line. ये मेरी patent line बन चुकी है. So this patient had hair transplant. Anesthesia उन्होंने ज़्यादा दे दिया 5000 grafts लगाने के लिए, and patient developed necrosis of entire scalp in 72 hours. Entire scalp necrosis. I have seen it. Trust me. In skin, I have seen even burn patient. Skin में मैंने जैसे इतनी OPD की है. That was a sight I'll never forget in my life. PGI में बेचारे को admit किया था, and entire graft was removed. So he came to me for healing. मैंने तो उसे सिर्फ कैलेंडुला पे डाला, फिर बैठ के उसका स्टडी किया केस. उसको बोला कि भैया आप ना हफ्ते बाद वापस दिखाओ, तब तक मैं सोचा थोड़ा स्टडी कर लूंगी, and accordingly I treated that patient. But that is the reason, proper diagnosis. And if a patient is having suppurative tendency, or if the patient's scalp is not healthy, or patient has a history of bacterial furunculosis, that is why cause is very important. You should not advise them to go for a diabetes uncontrolled है, or patient warfarin कोई blood thinner पे है, then you should evaluate each and every factor. Better is यहाँ पे मैं जहाँ मैम के पास जाती थी, मैम सीधा बोलती थी you go to MD medicine, आप health certificate लेके आ जाइए, then we'll take you to hair transplant. We are not taking a risk. As simple as that. So then we go for hair transplant. पहले पूरे skin की ना पीछे से strip काटी जाती थी और वो लगाई जाती थी, but उसके scar tissue ज़्यादा बनते थे, वो पहले के जमाने में किया जाता था. Then in PGI, follicular unit extraction, that means each and every follicle was removed with proper punches, and slits were made at the degree of 45-degree angle, and it was placed. Basically हम बीज बो रहे हैं, simple language में अगर हम बोले, and उसमें PRP साथ में डालते थे so that grafts को viable रखना. Hair transplant is not a very brainy work. Hair transplant is a skilled work, but वो grafts को retain करना, that is where every doctor skill differ और हर doctor के result differ कर जाते हैं. And in this वो एलोपैथी की ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर होम्योपैथी लेते, we as homeopaths can make sure that the healing becomes very healthy. The tissue granular healing is promoted. So stem cell and PRP का already मैं आपको difference बता चुकी हूँ कि क्या है. And the research which I have participated with Aura Skin Institute and PGI Chandigarh was कुछ patient को platelet दिए गए थे while hair transplant और कुछ को नहीं दिए गए थे. And patients, even in cases of alopecia areata, showed amazing results with PRP. PRP basically क्या करता है? Regeneration तुम्हारी बढ़ाता है. Regeneration तुम बढ़ाते हो, that is a good thing. हम homeopaths क्या करते हैं? We also promote healing. We also regenerate tissue. So we are doing basically similar track. मतलब we are not their enemy, they are not our enemy. We both want the same thing. So we can work together. And homeopathy can help patients who have undergone hair transplant. Minoxidil क्या करता है? As I told you, वो vasodilation करता है, oxygen provide करने के लिए. Homeopathy में we can do the similar thing. And इसमें अगर patient को PRP, for example, किसी patient ने hair transplant करवाया, उसने 4 PRP की, उसके graft वगैरह viable हो गए. But later on उसके graft, जब कई बार ये होता है कि smoking कर रहा है patient, या diet ठीक नहीं है, या वैसे ही कहीं बीमार पड़ जाए acute तरीके से, तो हर बार तुम PRP नहीं कर सकते, वरना infection वगैरह थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है. So that is why homeopathy will help to retain those results of PRP and stem cells.
लास्ट बट नॉट लीस्ट, माय थर्ड लास्ट स्लाइड इज द होम्योपैथी, जो हमें सबको पता ही है, यू नो, व्हाइल सर्जरी व्हाट ड्रग्स वी कैन गिव, पेन में क्या देनी चाहिए, ये सारी रेमेडीज वी कैन यूज. एंड डाइट, एनी पेशेंट हु, कोई भी पेशेंट हमारे पास नॉर्मली आता है जिसको प्रोटीन इंटेक वो कम ले रहा है, हु स्किप कर रहा है ब्रेकफास्ट, तो उनकी ग्राफ्ट इतने वायबल नहीं रहते. दैट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन एनी हेयर फॉल ट्रीटमेंट. कैंसर पेशेंट हो, ऑटो इम्यून पेशेंट हो, या कोई जनरली भी आ जाए, ऑलवेज रिमेंबर टू आस्क द डाइट हिस्ट्री, हाउ मच प्रोटीन दे आर कंज्यूमिंग. Whenever you have a patient who's of hair fall, डाइट वाला क्वेश्चन आपके केस स्टडी में, केस टेकिंग में होना ही चाहिए. ओके. This was the PRP and hair transplant result. And this is what I wanted to talk one last point, कि कई बार पेशेंट ना बार बार रीडू करवाता रहता है, कि एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करवा दिया, फिर थोड़े महीने बाद और एक बार करवा दिया, फिर थोड़े दिन बाद, तो ये हो जाता है कि वहाँ स्कार टिश्यू डेवलप हो जाता है. आफ्टर 3 to 4 टाइम्स स्किन ही वैसी वायबल बचती नहीं है कि जिसमें कुछ हो सके. तो इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सप्लेन टू द पेशेंट कि आप एक बार करवाओ, चूज द करेक्ट सर्जन इफ यू वांट टू गो फॉर इट. कई बार पेशेंट आपसे पूछने नहीं आएगा कि मैं ये करवाऊं या नहीं करवाऊं, वो करवा लेगा. पेशेंट यूजुअली करवा के उसके बाद जब कोई प्रॉब्लम होता है तब हमें ढूंढते हैं. होम्योपैथी भी यूजुअली तब आती है जब कोई और पैथी नहीं उनको रास आ रही होती है. दिस इज माई कंक्लूजन नाउ. मैंने केस 1 में टिपिकल मेनिंजियोमा लिया था, इन विच होम्योपैथी प्लेज अ सपोर्टिव रोल एंड कन्वेंशनल मेडिसिन प्लेज अ प्राइमरी रोल. मेरा टॉपिक है कन्वेंशनल वर्सेस होम्योपैथी. मैं यहाँ यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कहाँ कन्वेंशनल इंपॉर्टेंट है, कहाँ होम्योपैथी इंपॉर्टेंट है, हाउ वी शुड गो पैरेलल. रेपर्टरी मर्फी लीचन, आई हैव यूज्ड द क्लिनिकल मेथड. मॉर्फिया में स्टेरॉइड का सपोर्ट लेने से बेटर है हम होम्योपैथी करें. तो होम्योपैथी प्लेज द प्राइमरी रोल. Primary is homeopathy because it's an autoimmune condition. But this is one thing which major homeopaths miss out. Supplement is not allopathy. It is not homeopathy. It is supplement. अगर कोई पौधे में मिट्टी कम हो, आप चाहे पानी डालो, दवाई डालो, वो पौधा नहीं उगेगा जब तक आप मिट्टी कंप्लीट नहीं करते उसकी. So if a patient requires thyroxine is a supplement, अगर थायराइड सप्लीमेंट आप दे रहे हो साथ में, पेशेंट की ऑटोइम्यून कंडीशन विद होम्योपैथी अगर आप ट्रीट कर देते हो, आपको आप पेशेंट का थायराइड का सप्लीमेंट है उसके डोज उनका एलोपैथी डॉक्टर कम करते जाएगा, क्योंकि बॉडी को इतनी जरूरत नहीं होगी. तो यू डोंट हैव टू स्टॉप देयर सप्लीमेंट. बॉडी को नीड नहीं होगी तो अपने आप वो रिपोर्ट आप बस रेगुलरली करवाते जाओ. एंड आई हैव सो मेनी पेशेंट जो थायराइड की दवाई ले रहे थे एंड देयर मेडिसिन डोज हैज रिड्यूस्ड विद होम्योपैथी. तो इसमें कई बार पेशेंट को ये अवेयर करवाना पड़ता है कि आप जो ले रहे हो वो supplement which is required for your body. Hair transplant surgery में we play a supportive role and इसमें complex, because अगर patient हमारे पास आ रहा है, we'll have to give prescription like calendula, arnica together. It's a complex prescription. And PRP stem cell, as I told you, this is the best topic we can have for research as homeopaths. We can work for isopathy, for PRP stem cell, that is on which I'm working. Hopefully, if my paper gets published, I'll be able to share with you guys. And they work parallel together. So homeopathy and conventional medicine both play an important role. A physician must have appropriate of not just materia, organon and repertory, but also pathology in medicine if you're treating deep pathology. One approach cannot yield productive result in all the cases. हर केस अलग होता है, हर केस में आप एक ही अप्रोच नहीं रख सकते. And we must know the scope and limitation of each pathy so that the patient can get maximum benefit. यहाँ पे पेशेंट की हम मैक्सिमम, हमें ये नहीं सोचना है कि हमने ये दे दिया तो होम्योपैथी का नाम कम हो जाएगा ज्यादा. एलोपैथी के भी लिमिटेशंस है, वहाँ आयुर्वेदिक के भी लिमिटेशन है, अब हमारे भी लिमिटेशन. सो यू शुड नो. एंड ये जजमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से आती है. मोर एक्सपीरियंस यू हैव, मोर यू विल गेट द जजमेंट ऑफ वेयर टू स्टॉप, व्हाट टू प्रॉमिस, व्हाट नॉट टू प्रॉमिस, एंड वेयर टू कमिट एंड हाउ मच टू कमिट. सो आई विल एंड माय webinar today. If you have any doubts, any questions, feel free to contact me, ask me, write emails to me. I'll be happy if you can share more knowledge which I am not aware, and happy teachers to you once again. Thank you. Namaskar. You have any questions you can ask? Yes. Thank you, Dr. Ishita. आप सभी लोगों को नमस्कार. मैं थोड़ा लेट हो गया. Thank you for giving me this wonderful opportunity. Thank you. Thank you, Dr. Shweta. और जो टीचर्स डे है वो आज वाकई में थोड़ा कामयाब हो गया हम लोगों का कि हमें आप जैसे टीचर मिले.
और हमने हेयर फॉल पे इतना सब कुछ सीख लिया। हालांकि आपने सबसे अच्छे पॉइंट्स जो बताए वो क्लिनिकल होम्योपैथी को लेकर के बताए। जब होम्योपैथी की बात आती है तो होम्योपैथी सिर्फ होम्योपैथी है, आप किसी भी रूप में करो लेकिन सिर्फ होम्योपैथी करो, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। हर एक चीज़ को ध्यान में रखना है, कोई भी इंसान या कोई भी पैथी या कोई भी दुनिया में बनी हुई चीज़ कभी बेकार नहीं होती। सब चीज़ों की अपनी अपनी अहमियत है, डॉक्टर साहब ने अभी बहुत बखूबी समझाया हमें। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बालों को लेकर के बहुत एहतियात बरतनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जब बालों के केस आते हैं तो बहुत सारे, क्योंकि बाल जो है वो कॉस्मेटिक रीजन है। एक्चुअली अगर हम बालों की सिग्निफिकेंस जाने तो बाल सिर्फ इसलिए हैं कि आपके जो थर्मल कंट्रोल है उसको मेंटेन कर पाएँ। बालों का और कोई भी रोल नहीं है। धीरे धीरे जैसे इवोल्यूशन होता चला जा रहा है हमारे बाल कम होते चले जाएंगे, ये सच्चाई है। तो जितने भी मेरे जैसे गंजे अगर हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग इवोल्यूशन प्रोसेस में सबसे आगे हैं। और ये बात हम लोग इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने कभी ऐसा कॉस्मेटिक रीजन देखा ही नहीं कि बिना बालों का कोई देख लें। खासकर एशियन कंट्रीज में या इंडिया जैसी कंट्री में क्या होता है कि हम लोग अगर किसी को बिना बालों के देखेंगे तो पता नहीं हम लोग कैसे महसूस करेंगे। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि 2007 में मैं और मेरा फ्रेंड तिरुपति गए। साउथ इंडिया में एक जगह है तिरुपति, और हमने वहाँ पे जाकर के देखा कि सब लोगों ने अपने बाल जो हैं वो डोनेट किए हुए हैं। तो मैं और मेरा फ्रेंड कहने लगे यार हम भी डोनेट करेंगे। हमने किया और आप यकीन मानिए कि हमें कुछ भी फीलिंग नहीं आई कि हम लोग कुछ अलग दिख रहे हो, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम लोग सबको, चाहे लेडीज हो चाहे आप जेंट्स हो बच्चे हो, सब हमारे जैसे थे। हम लोग 3 दिन बाद जब लौटने लगे और जैसे जैसे हम लोग ट्रेन में आते मतलब अपने घर के नजदीक आने लगे दिल्ली, तो हमें महसूस होने लगा यार सबके तो बाल हैं और हमारे हैं नहीं, और लोग हमें पता नहीं क्या निगाह से देख रहे हैं। जैसे ही हम लोग अपने घर आए तो हमें लगा कि यार घर वाले एकदम चौंक गए कि यार क्या हो गया, क्योंकि हमारी ट्रेडिशन में बाल जब भी कटते हैं जब किसी की डेथ हो जाए। लेकिन वहाँ पे हमें ये फीलिंग नहीं आ रही थी क्योंकि हमें सब लोग वैसे ही दिख रहे थे। लेकिन यहाँ दिल्ली में आते आते मतलब मैं इतना परेशान हो गया कि जब तक शायद 1 महीने तक मेरे बहुत छोटे से बाल नहीं आए तब तक हर कोई आदमी, हर पेशेंट, हर रास्ते में आते हुए मुझे देखे यार पता नहीं क्या हो गया। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट कहने लगे सर आपने क्या करवाया। मैंने कोई बात नहीं, बाल ही तो कटवाए हैं, दोबारा आ जाएंगे, इसकी चिंता नहीं है। तो बाल जो है अभी हमारे लिए सिर्फ एक कॉस्मेटिक का रीजन बचे हैं। बाकी जो थर्मल कंट्रोल, मगर हम लोग बात करें कि हाइपोथैलेमस का जो मेन काम था वो थर्मल्स को कंट्रोल करना। उसके बाद बालों का सबसे मेन काम था, जब हम लोग कभी एंशिएंट टाइम में बंदर हुआ करते थे तो हमें टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए हमारे बाल ही हुआ करते थे। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता चला गया हमारे पास एसी आ गए, हमारे पास हीटर्स आ गए, और हमारे थर्मल्स को कंट्रोल करने के लिए हमने अपनी डिवाइसेस बना ली। मतलब आज हमारे पास ऐसी डिवाइस है कि अगर हमें 27 पे टेम्परेचर चाहिए तो 27 पे मिलेगा। देन व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ हेयर? तो हेयर का जो यूज है वो अब खत्म होता जा रहा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे, मैंने जब पेशेंट देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारे मेल्स फीमेल्स सब लोग डिप्रेशन में है कि सर हमारे अगर बाल नहीं आए तो शादी नहीं होगी। ये एक सबसे कॉमन फैक्टर है। हम लोगों को शायद अभी सोच बदलनी पड़ेगी और ये सोच बदलने में बहुत टाइम लगेगा। मैंने कभी अपने बालों पर ध्यान नहीं दिया और हो सकता है इसी वजह से ऐसे, और क्योंकि मैं यही सोचता रहा हूँ कि मैं एवोल्यूशन में थोड़ा सा और बाकी लोगों से आगे हूँ। अभी हमने एक छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री भी आई थी, एक मूवी आई थी, उसमें एक लड़की के बाल गायब हो जाते हैं। बाला नहीं वो बाला नहीं है, वो कोई और है मूवी। उसमें उसको एलोपेशिया टोटलिस हो जाता है और उसके बाद वो पीआरपी जैसे बहुत सारे ट्रीटमेंट कराती है और अल्टीमेटली जब उसको स्टेज पे जाना होता है तो फिर वो अपने जो नकली बाल है वो उतार देती है और बताती है कि हाँ वो डांस भी करती है। शायद बाला ही हो या कोई और, मैं मूवी का नाम तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी पिक्चर थी। उसने बताया कि एक्चुअली में हम लोगों को ये आना चाहिए। आप सोचिए कि अगर कीमोथेरेपी, मतलब कोई ऐसी थेरेपी जो डॉक्टर साहब ने अभी सब कुछ बताया, और डॉक्टर साहब मैं एक छोटा सा बस करेक्शन करूंगा कि आपने जब आर्सेनिक की बात कर रहे थे तो जितने भी कीमोथेरेपी हैं या जितने भी ऐसी इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी हैं उसके लिए आर्सेनिक बहुत एंशिएंट टाइम से यूज की जा रही थी। डॉक्टर हेनियन सर के टाइम पे भी यूज हो रही थी, इसीलिए सर ने आर्सेनिक यूज ना करके आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड यूज किया। ट्राईऑक्साइड, एब्सोल्युटली। हमारी जो आर्सेनिक है वो एक्चुअल में आर्सेनिक नहीं है। जो लोग भी मुझसे कहते हैं, जो लोग भी हमसे ये कहते हैं कि आर्सेनिक पॉइजनस हो सकता है,
तो मैं उनको समझाता हूँ कि हमारी आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड है, दैट इज प्योरली नॉन पॉइजनस। तो उसको आप Absolutely. हाँ 1x में दोगे, 2x में दोगे, 3x में दोगे, 30 में दोगे, ये मैटर ही नहीं करता कि हम डायनेमिक डोज में देंगे। आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड है, मतलब नॉन पॉइजनस है, आप किसी भी फॉर्म में कभी भी दे सकते हैं। और ये आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं है। हमें बहुत सोच समझ करके, क्योंकि हमने ये जब आयुर्वेद का एक चल रहा था और 2006 या 7 की बात है, तो उनमें बहुत सारे आयुर्वेदिक फिजिशियन ने ये एक पेपर रिलीज किया था कि होम्योपैथी की जो आर्सेनिक एल्बम है वो किडनी फेल कर रही है क्योंकि इसमें आर्सेनिक है। तो ऑर्बिट क्लिनिक ने ये पहल की थी और उनको पूरा ही लिटरेचर भेजा था कि हमारी आर्सेनिक एल्बम एक्चुअली आर्सेनिक नहीं होती, वो आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड है। ये हमारी वेबसाइट पे भी ऑलरेडी आर्टिकल है और हमने सबको अवेयर किया कि आर्सेनिक नॉन पॉइजनस है। हमने ये बात बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को भी बताई। तो ऐसी बहुत सारी चीज है। अब जैसे हेयर फॉल की बात करें तो मैं आपको एक शेयर करना चाहता हूँ कि जेनाइटल एरियाज में या प्यूबिक एरिया के जो हेयर्स हैं या फिर एक्सिलरी हेयर हैं, इसमें अगर सिंगल हेयर वाइट मिले तो मुझे रिपोर्ट में सिर्फ एक ही मेडिसिन मिली है, वो है नेट्राम्यूर। इसके रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। कोई भी आकर के बस आपको अगर कहीं नेट्राम्यूर का क्लू चाहिए ना कि आपको नेट्राम्यूर कंफर्म करना ही है, तो मैं कभी कभी रिवर्स में चला जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि यार आपके प्यूबिक हेयर में या एक्सिलरी हेयर में कोई ऐसा तो नहीं है कि एक बाल सफेद है। पेशेंट एक्चुअली बोलते हैं कि हाँ डॉक्टर साहब पता नहीं एक ही बाल सफेद है, कई महीने हो गए। तो यहीं से नेट्राम्यूर कंफर्म हो जाती है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी होम्योपैथी, क्योंकि ओशन है, हम लोग कहीं से भी कुछ भी पिकअप कर सकते हैं। और मैं हमेशा ये मानता हूँ कि आप चाहे क्लासिकल उसको नाम दो, चाहे क्लिनिकल नाम दो, चाहे किसी और रिपर्टरी को यूज करो, चाहे मिक्सचर यूज करो, चाहे जो भी करो, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ होम्योपैथी करो। जिस दिन आप सिर्फ होम्योपैथी करना सीख जाएंगे तो सिर्फ होम्योपैथी होगी। और किसी भी चीज की कभी भी कोई बुराई नहीं है। पैथोलॉजी के बिना आप चल नहीं सकते, क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने बिना पैथोलॉजी के कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने बताया है मैट्रिमेडिका की पेन इन ओवरी। तो पेन इन ओवरी जब मैट्रिमेडिका में प्रूव हो रहा होगा तो बताइए ऐसा कौन पेशेंट है, आपको मिला है आज तक कोई ऐसे पेशेंट, जितने भी डॉक्टर्स हैं, कि उस पेशेंट ने आकर ये कहा हो कि पेन इन ओवरी? शायद मुझे भी नहीं मिला, क्योंकि वो एक्चुअली वो सिम्टम्स थे जो डॉक्टर हैनीमैन सर के साथ एक डॉक्टर थे, तो किसी भी फीमेल डॉक्टर ने ये बताया होगा कि मुझे ओवरी में पेन आ रहा है प्रूविंग के दौरान, वरना सिर्फ पेन इन ओवरी मिलना बहुत ही मुश्किल है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसमें आप कभी भी कंफ्यूज मत करो कि हमें होम्योपैथी इस डायरेक्शन में जाना है या उस डायरेक्शन में जाना है। अपनी भी डायरेक्शन बनाओ। सोचो अगर आप सिर्फ होम्योपैथी कर सकते हैं तो करते रहेंगे ना, सिर्फ होम्योपैथी करते रहेंगे तो आप एक दिन होम्योपैथी के अपने आप प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करते रहना है। आप फील करेंगे कि आप होम्योपैथी के ऐसे ट्रैक पे आ गए कि डॉक्टर हैनीमैन सर भी शायद खुश हो जाए कि हाँ आप बहुत अच्छे होम्योपैथ हैं। तो डॉक्टर साहब मैं 2-3 क्वेश्चंस हैं, जरा हम एक बार रिवाइज करता हूँ। हाँ जी सर। हाँ जी, डॉक्टर अशोक मदान सर पूछ रहे हैं किसी आपने कोई केस सेशन किया था, प्लीज डॉक्टर आफ्टर सेशन फ्यू मोर वर्ड्स सल्फर व्हाई नॉट। सल्फर के रिगार्डिंग सर ने क्वेश्चन पूछा है। सल्फर हैज सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। ये केस मेरे पास फॉर्चुनेटली कोई केस जब भी हम देख लेते हैं, पेशेंट की ऑलरेडी सुप्यूरेटिव टेंडेंसी थी। एंड यूजुअली जो इंटर्न्स होते हैं जो जस्ट पास आउट होके निकलते हैं, अगर स्किन रिलेटेड कुछ भी होता है तो सबकी फेवरेट रेमेडी सबकी सल्फर होती है यूजुअली। सल्फर व्हाट इट डज, इट हैज अ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन। वो जो भी अंदर होती है वो चीजें यूजुअली बाहर निकालता है। अगर किसी पेशेंट ने स्टेरॉइड लगा के चीजें सप्रेस भी की है तो वो चीजें सारी बाहर निकालता है, सो दैट वी कैन ट्रीट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटीसोरिक ड्रग बेसिक, अपनी जो माइजमेटिक के हिसाब से अगर हम जा रहे हैं। तो व्हाट वी आर डूइंग, जो ये पीआरपी है वो माइक्रो नीडलिंग हो रही है, तो एक ट्रॉमा हो रहा है। जब ये चीज हो रही है और आप सल्फर दे रहे हो, इन सर्टेन केसेस सुप्यूरेशन इज सीन, ग्राफ्ट तक बाहर निकल के आ जाते हैं। अगर सल्फर आप दे दो या सिलीशिया आपने लो पोटेंसी में दी है, आई हैव सीन द ग्राफ्ट एक्चुअली गेटिंग रिजेक्टेड, क्योंकि बॉडी हीलिंग चालू कर देता। वो ग्राफ्ट को समझता है कि ये कोई फॉरेन बॉडी, मुझे इसके बाहर फेंक के निकाल देना है। इन सिंपल लैंग्वेज इफ आई टेल यू, सो दिस आर द टू ड्रग्स, नॉट दैट यू कैन नॉट गिव इट एवर, बट जब भी हुआ है
एक्यूट में अवॉइड कीजिए. एंड इफ यू हैव टू गिव, डिपेंडिंग ऑन द मेंटल्स काफी अच्छे से मैच हो रहे, गिव इन हाई पोटेंसी. इफ यू आर गिविंग इन 1 1 डोज तो प्रॉब्लम नहीं आती. 30 में रिपीटेड डोज जब आप देते हो, दैट टाइम दिस एक्शंस आर यूजुअली सीन. I hope I've satisfied their question. Any more questions? बहुत अच्छे. यस मैम. डॉक्टर डिम्पल बिश्नोई पूछती हैं, इज सोमेटोट्रोपिन 30 यूजफुल इन फंगस इन्फेक्शन ऑफ हेयर्स? सोमेटोट्रोपिन बेसिकली एंडोक्राइनो ड्रग है. सोमेटोट्रोपिन है वो ग्रोथ हार्मोन जो होता है. फंगल इन्फेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपकी बॉडी की ससेप्टिबिलिटी और इम्यून सिस्टम वहां डाउन जा रही है. बॉडी की इम्यून सिस्टम जब डाउन जा रही है तो गिव समथिंग विच विल इंक्रीज द इम्यून सिस्टम. सोमेटोट्रोपिन ग्रोथ हार्मोन है, जहां डीप पैथोलॉजी है, इरिवर्सिबल पैथोलॉजी, डीजनरेशन हो रहा है कि अपना कोलेजन नहीं बन पा रहा है, या कोई सेल्स मर रहे हैं, या कोई पेशेंट है जिसकी हाइट का इश्यू आ रहा है, या कोई पेशेंट है जिसको कोई ग्रोथ स्पर्ट का प्रॉब्लम आ रहा है. दैट टाइम यू शुड कंसिडर दिस ड्रग्स लाइक पिट्यूटरिन, सोमेटोट्रोपिन, और many other drugs which are already being discussed in nozodes and sarcodes. ये सारी फर्स्ट चॉइस ऑफ रेमेडी कभी भी मैं नहीं कहूंगी. मैंने भी पहले फॉस्फोरस ही ली थी, बट फॉस्फोरस में भी आई डिडंट से दैट आई चेंज द रेमेडी. 7 months के बाद आई केम टू कंक्लूजन. इफ यू सी माय फॉलोअप, 7 महीने बाद मुझे लगा कि भाई नहीं, मुझे पैथोलॉजी अप्रोच भी देखना पड़ेगा. दैट इज व्हाई आई गिव सोमेटोट्रोपिन, क्योंकि मॉर्फिया में कोलेजन एग्रीगेट हो जाता है एंड इट इज ऑटो इम्यून फाइब्रोसिस. सो इट इज, मैं जितना टाइम रेमेडी को वेट करने में लगाई, उतने टिश्यूज ऑलरेडी फाइब्रस हो रहे हैं, उतना परमानेंट इरिवर्सिबल डैमेज हो रहा है. सो आई डोंट हैव मच टाइम, आई एम वर्किंग अगेंस्ट टाइम. So that time I took somatotropin and it worked wonders. And second important point, why I took somatotropin. Somatotropin is secreted from anterior pituitary, and that girl had particularly undergone puberty recently, which also pituitary plays an important role. So इसलिए उसका हार्मोन के साथ कनेक्टेड था मॉर्फिया एंड कोलेजन. जैसे कोई फीमेल भी प्यूबर्टी अचीव करती है, थोड़ी सी वो स्किन में ग्लो आ जाता है, because there are lot of female hormones which are going on, collagen stimulation होता है. That is the reason I wanted to target the pituitary in the correct way. And somatotropin की side effect हो सकती है, that's why I gave 30 का only 1 dose. Fungal में I would rather say give something which will increase the immune system, not somatotropin. I hope I have been explanatory in this. बहुत अच्छे. अच्छा, और कोई क्वेश्चन है? यस. डॉक्टर शनाया राजपूत पूछते हैं, कैन ए होम्योपैथ डू PRP? Ideally you should not do PRP. This is my personal belief. हम सबको पता है ब्लड प्रेशर की कौन सी दवाई देनी चाहिए, हम सबको पता है कि इंसुलिन का कितना डोज कौन से डायबिटिक को देना चाहिए, बट आई पर्सनली फील जिसका काम जो करे, लर्न टू रेफर. आई हर्ड सो मेनी पेशेंट कि उनका किडनी स्टोन 5 mm का यूटी जंक्शन में अटका है, और उनको मैंने रेफर किया कि भाई आप करवा लो वरना हाइड्रोनेफ्रोसिस हो जाएगा. वो मेरे हाथ से एक पेशेंट गया, उसने 8 फैमिली मेंबर्स लेके आया. ये सबके साथ ये हुआ होगा. तो लर्न टू रेफर, डू नॉट, मतलब मेरी प्रैक्टिस में आई हैव सीन कि जब भी मैंने पेशेंट को रेफर किया या जाने दिया है, सही सलाह दी है, वो हमेशा 4 और पेशेंट ही लेके आता है. तो आई ऑलवेज बिलीव कि जहां मेरा स्कोप नहीं, इवन इफ आई एम अवेयर कि ये पैथोलॉजी है, I like to refer to the professional. Very nice. बहुत अच्छे. और जहाँ तक PRP की बात है, तो मैं सब लोगों को ये बोलता हूँ कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो आपको थोड़ी कंडीशंस के साथ करना पड़ेगा, जिसके लिए आप टेक्नोलॉजिकली थोड़े ठीक होने चाहिए और पढ़ाई वाइज भी थोड़ा ठीक होना चाहिए. जहाँ तक बात है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं, जैसे अभी जब कोविड-19 चल रहा था, तो हम लोग भी कोविड-19 पे काम कर रहे थे. तो एक डॉक्टर को मैंने ये बोला कि हम लोग होम्योपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं, आप वेंटिलेटर पे हमारे हिसाब से रखो. तो वो जो फिजिशियन थे, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप क्या जानते हो वेंटिलेटर के बारे में? तो मैंने उनको वेंटिलेटर की हिस्ट्री बताई, मैंने उनको पॉइंट्स बताए. मैंने कहा सर इतना प्रेशर रखना है, इतनी ऑक्सीजन रखनी है, इतनी देर के लिए रखनी है, मैं ये काम कर रहा हूँ, इतनी मेडिसिन देनी चाहिए. तो वो शॉक हो गए कि आपको कैसे नॉलेज है. तो मैंने उनसे कहा कि वेंटिलेटर मशीन जब बनी थी तो ये उस पर कहीं भी नहीं लिखा था कि सिर्फ एलोपैथी यूज़ करेंगे. हर कोई यूज़ कर सकता है, ECG मशीन को हर कोई यूज़ कर सकता है, लेकिन हमें वो टेक्निक्स आनी चाहिए. हम लोग एक्चुअली पढ़ते नहीं हैं. जब हमारे पास बात आती है कि हम लोग कैसे काम करेंगे, तो हम लोग ज़ीरो हो जाते हैं. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पे काम भी कर रहे हैं. कभी भी कोई भी मशीन
इवन ऑक्सीजन का मीटर आजकल चल रहा है, हम लोग ऑक्सीजन नाप रहे हैं। जितनी भी मशीन है वो सब इंजीनियर्स ने बनाई है, वो डॉक्टर्स ने नहीं बनाई है। और इंजीनियर्स ने कभी भी ये सोच के नहीं बनाई कि सिर्फ एलोपैथ काम करेंगे, लेकिन एक्चुअली पेटेंट्स उन लोगों के हो जाते हैं, वो लोग उन पे काम करते हैं, वो लोग रिसर्च करते हैं। और मैं आप लोगों को बताऊं कि जो हम केस शेयर कर रहे हैं वो ग्रेंडेलिया मदर टिंजर की हमने 1 ड्रॉप 100 ml ऑफ वाटर में दे करके उसको वेंटिलेटर पे रिवाइव किया, और अगले 24 घंटे के अंदर हमें वेंटिलेटर की जरूरत भी नहीं पड़ी। और ये तो अच्छा है कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो एलोपैथिक फिजिशियंस हैं, जो मेरी बात मानते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारा रिस्क, मैंने कहा हाँ ठीक है, हमारा रिस्क जो होगा देखा जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग काम नहीं कर सकते, लेकिन हम लोगों के पास जो टेक्निक्स हैं या जो हमारी लर्निंग्स हैं थोड़ा पीछे ले जाती है, जो मैंने फील किया है। हो सकता है बहुत सारे लोग काम भी कर रहे हों, लेकिन कभी भी मशीनों से डरना नहीं है, हमें वो टेक्निक सीखनी है। और डॉक्टर हैनीमैन अगर ऐसे डरते रहते तो शायद होम्योपैथी की इजाद ना कर पाते। उन्होंने यही सिखाया कि डेयर टू बी वाइज, बस जो भी है मिलता जाए, करते चले जाओ, लेकिन सबके एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए, आपके ऑब्जर्वेशंस होने चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इशिता। एक क्वेश्चन और जी, सर। पूछते हैं। हाँ जी। डॉक्टर रूबल दिलप्रीत पूछते हैं, होम्योपैथिक रेमेडीज विच कैन बी यूज लोकली इन फॉर्म ऑफ टिंचर और एनी अदर फॉर्म टू स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ along with internal treatment। कहाँ पे ये क्वेश्चन? डॉक्टर रूबल चैट में है मैम, डॉक्टर रूबल एक दिलप्रीत। सेकंड, could you please repeat the question? जी, होम्योपैथिक रेमेडीज विच कैन बी यूज्ड लोकली इन Okay, फॉर्म ऑफ। okay, got it. Sir, actually, in fact, very nice question. UK में एक डॉक्टर है, I will not name the doctor. In fact, पूरे दुनिया में वो एक ही डॉक्टर है। उसने अभी नया शुरू किया है मीजो PRP होम्योपैथी क्लिनिक। I do not have enough knowledge, but जहां तक मेरी बेसिक एनेट फिजियोपैथो जो मैं जानती हूँ, he is injecting PRP mixed with homeopathy mother tinctures and he is injecting to the patient. यहाँ पे I do not see the reason why you should do it. जहाँ मुंह से देख के आप सिंपल चीज कर सकते हो। डॉक्टर हैनेमैन ने इनफैक्ट ऑर्गेनॉन में बताया भी है कि होम्योपैथी कैन बी गिवन इन डिफरेंट फॉर्म। मुंह से दे सकते हो, स्टीम दे सकते हो। शुरुआत में उन्होंने ये सारे ट्रायल्स खुद भी किए थे, इफ यू रीड योर प्यूरा वेरी वेल। पर इसमें उन्होंने दिया था कि जो टंग के ऊपर एब्जॉर्प्शन होती है वो मैक्सिमम होती है। तो मदर टिंचर वी कैन थिंक, पर अगर पेशेंट को सोरियासिस है या एक्जिमा है या एटोपिक डर्मेटाइटिस है, तो मॉइस्चराइजर के साथ अगर आप कैलेंडुला या कुछ डाल रहे हो हीलिंग प्रॉपर्टीज के साथ, बट उससे भी ज्यादा आई प्रेफर कि मॉइस्चराइजर बोल दो और कैलेंडुला 30 मुझसे दे दो। दैट इज व्हाट माय प्रेफरेंस इज। आई कुड बी रॉन्ग, आई एम स्टिल लर्निंग, आई वुड से। बट स्टिमुलेट हेयर ग्रोथ के लिए बहुत सारे, कि आर्नी का शैम्पू हो गया, ये हो गया, वो हो गया, डेफिनेटली ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो। बट व्हेन यू आर डीलिंग विथ नॉर्मल हेयर फॉल, तब ये सारी चीजें आपको काम आती है जब एक्चुअली आपके पास मॉर्फिया का केस आ रहा है या SLE की पेशेंट आ रही है, या आपके पास कोई पेशेंट लेप्रेसी के साथ आईब्रो की लेटरल साइड जो फॉलोअप होने लगी, ये सारी आ रही है। तो मदर टिंक्चर्स इतने काम नहीं करते जितनी प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी या क्लिनिकल होम्योपैथी से प्रिस्क्राइब की हुई रेमेडी काम करती है। बिकॉज वी आर स्किन की अंदर की, जैसे मैंने पहले बोला था, कोई भी कंडीशन अगर होती है तो अंदर से पहले चालू होती है, तब स्किन एंड हेयर में दिखती है। स्किन और डर्मेटोलॉजिस्ट आर द पीपल who can diagnose very many diseases at a very early stage। कि डायबिटिक है, पेशेंट को शुगर कंट्रोल में नहीं, सबसे पहले स्किन का डॉक्टर वो चीजें स्पॉट करता है। तो दैट इज द रीजन, इफ यू आर टेलिंग दैट मैं स्किन की डॉक्टर हूँ या स्किन प्रैक्टिस कर रही हूँ, you have to make sure that you refer to proper MD medicine doctor, so that patient can have simultaneously, he can have benefit of homeopathy, he can have benefit of whatever disease he is suffering, and get proper diagnosis and treatment for that। थैंक यू। मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा है, और यहाँ पे क्योंकि डॉक्टर श्वेता सिंह भी हैं, ऑर्गन की मास्टर हैं, तो मैं चाहता हूँ कि डॉक्टर श्वेता सिंह इस मामले में जरा बताओ क्या हो रहा है। क्योंकि जो डॉक्टर इशिता मैम बता रही हैं वो डॉक्टर फारशिद हैं कोई यूके के, जो ऐसा करते हैं। ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो ऐसे काम करते हैं। मैं आपको एक अरेबियन स्टोरी बताऊंगा, जो थोड़े कप थेरेपी में भी मदर टिंचर्स का यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो हमें वही चीज़ें जाननी है कि आखिर क्या है। तो डॉक्टर श्वेता मैम, आप प्लीज़ बताओ कि इसमें क्या सच है। What I know is डॉक्टर हैनीमैन ने जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन है मेडिसिन की, उसको कंडेम किया है। एंड
वन मोर थिंग, उन्होंने ये भी लिखा है कि जो भी मेडिसिन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरनल मेडिसिन ही उन्होंने प्रमोट किया है कि हमें जो भी ट्रीटमेंट देना है वो इंटरनल मेडिसिन ही प्रोवाइड करना है पेशेंट को। बट अगर आप एक्सटर्नली कोई मेडिसिन यूज करना चाहते हैं, दैट शुड बी द सेम। जो आप इंटरनली दे रहे हैं वही आप एक्सटर्नली देंगे, देन यू कैन गेट प्रॉम्प्ट रिजल्ट्स और द रिजल्ट्स इन अ रैपिड वे। अदर मेडिसिन की आप इंटरनली एक मेडिसिन दे रहे हैं, एक्सटर्नली एप्लीकेशन के लिए आप दूसरी मेडिसिन दे रहे हैं, दिस इज नॉट सपोर्टेड बाय डॉक्टर हैनीमैन, व्हाट आई नो। ठीक है मैम, आप बस एक बात और क्लियर कर दीजिए कि मान लो जैसे हम कैलेंडुला 30 दे रहे हैं, तो जो एप्लीकेशन है वो कैलेंडुला का मदर टिंचर करना है या 30 को करना है? सर आप वो कैलेंडुला मदर टिंचर भी कर सकते हैं, बट जो मेडिसिन होनी चाहिए दैट शुड बी द सेम। अच्छा, ओके, इस पे बात करेंगे मैम, बहुत अच्छा टॉपिक है। यस। और अगर आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो डॉक्टर हैनीमैन ने बहुत क्लियर से लिखा है कि हमारी जो मेडिसिन है वो एक्सटर्नली यूज़ हो सकती हैं, लेकिन उनको एक्सटर्नली यूज़ करने के अलग अलग तरीके हैं। इवन उन्होंने एनाटॉमिकल पॉइंट्स भी कुछ डिफाइन किए थे, हालांकि बहुत रेयर बुक है, फिर भी उन्होंने डिफाइन किया था, पब्लिकेशन नहीं हो पाया या बहुत रेयर हुआ, उनके स्टूडेंट्स इस बात को पकड़ पाए, लेकिन उन्होंने एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए जब भी कहा है उन्होंने सेम चीज़ों के लिए कहा है। अगर आप कैलेंडुला 30 दे रहे हैं तो आप मदर टिंचर कैसे अप्लाई कर देंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आप कैलेंडुला 30 अप्लाई करने के इच्छुक हैं, या तो आप कैलेंडुला को मदर टिंचर ही इंटरनली दें और कैलेंडुला का मदर टिंचर ही अप्लाई कराएं, तो बात बनती है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप 30 पोटेंसी दे दें और उसके ऊपर मदर टिंचर अप्लाई कर दें, दोनों अलग अलग चीज़ें। इस पर डॉक्टर हैनीमैन सर ने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और ये डॉक्टर रूबल जिसने भी क्वेश्चन पूछा है बहुत ही अच्छा लाजवाब क्वेश्चन है, और थैंक यू डॉक्टर रूबल और थैंक यू डॉक्टर इशिता और डॉक्टर श्वेता मैम। इसके बारे में एक टॉपिक जरूर लेंगे। एक क्वेश्चन और है जो बहुत अच्छा है। डॉक्टर इशिता मैम, आप थोड़ा लेट तो नहीं हो रहे हैं? नहीं सर, आई एम एब्सोल्युटली अवेलेबल। जी, एक क्वेश्चन आया है कि ग्रेइंग ऑफ हेयर और वाइट ऑफ हेयर दोनों में क्या डिफरेंस है? ग्रेइंग ऑफ हेयर, अगर मेलानोसाइट जहाँ होते हैं, जहाँ हेयर के सेल होते हैं, वहां से अगर व्हाइट होने कई बार स्टार्ट होते हैं, वो ग्रेइंग ही है। व्हाइट हेयर, ग्रे हेयर अलग अलग नहीं होते, दैट इज ग्रेइंग ऑफ हेयर। एंड कई बार फॉर वट एवर रीजन, अगर तुम बार बार आयनिंग कर रहे हो, स्ट्रेटनिंग कर रहे हो, एंड समटाइम्स ब्लीच इज द बिगेस्ट कल्प्रिट। जब मेरे पास ग्रेइंग ऑफ हेयर वाला पेशेंट आता है, ये फीमेल्स को थोड़ा ज्यादा नॉलेज होता है कंपेयर्ड टू मेल डॉक्टर्स, एटलीस्ट इन इंडिया। यू हैव टू नो व्हाट इज अ ब्लीच बर्न इन हेयर। अगर ब्लीच बर्न है तो मैं ग्रेइंग के रूब्रिक्स लूंगी, एसिड ग्रुप लूंगी, वो काम नहीं आएंगे। आई हैव टू टेक बर्न के रूब्रिक्स। इफ इट्स अ ब्लीच बर्न, उसको सिर्फ हील करना है। अगर आप उस पर कुछ भी दवाई लगा रहे हो तो आप और उसको इरिटेट करोगे। स्काल्प पे या कहीं भी मदर टिंचर लगा रहे हो, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन में थोड़ा बहुत अल्कोहल होता ही है। तो इस पेशेंट हैज कम टू अस कि भाई उसने पहले कोई अमोनिया की हेयर रिबॉन्डिंग या स्ट्रेटनिंग करवाई थी और उसके कारण व्हाइट हुए हैं, उसके बाद व्हाइट हुए हैं। तो सिर्फ अगर, और एक चीज में सारे पेशेंट आते हैं कि भाई ग्रे होने की कोई दवाई है। अगर स्ट्रेस के कारण कोई बच्चे, 20 साल के बच्चे ने बहुत ट्रॉमेटिक चीज देख ली और ग्रे हेयर हो रहे हैं, ऐसा केस आया है मेरे पास, मैंने एसिड पॉजिटिव पेशेंट ठीक हो गया था। बट अदरवाइज अगर कोई मेरे पास आ रहा है कि 40-50 ईयर्स ओल्ड की, ग्रेइंग का कुछ हो सकता है। ग्रेइंग की मैं पर्सनली, मुझे नहीं पता, और मैं इस चीज को बोलने में शर्म भी नहीं रखती कि ग्रेइंग ऑफ हेयर है, वो मुझे नहीं लगता कि वो कंट्रोल किया जा सकता है। वो नेचुरल एजिंग प्रोसेस, जो चीज नेचुरल होती है उस चीज को मैं टेम्पर करना ठीक नहीं समझती। तो अगर एज हो रही है और उसकी वजह से ग्रेइंग हो रही है, आई डोंट थिंक यू शुड स्टॉप इट। अगर ऐसा कुछ आता तो आई थिंक दुनिया में जितने डॉक्टर्स हैं सबके बाल ब्लैक ही रहते हैं फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि आपने बिल्कुल जो भी बोला है वो बहुत सच्चाई से बोला है। और ये बात मैंने पहले भी कहा कि ये बहुत एक्सेप्ट करने वाली बात है कि हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली बाल क्या हैं और बाल का काम क्या है। अभी आपने एक ब्लीच का नाम लिया, आप तो अब आज आपने जो भी प्रेजेंटेशन दी हमें वो बहुत थोड़े क्रोनिक केसेस की है जहाँ पे एक्चुअली में एब्सोल्यूट बाल चले जाते हैं या कीमोथेरेपी जो साइड इफेक्ट है वहाँ पे हैं। लेकिन हम लोग जो डेली प्रैक्टिस में सब लोग देख रहे हैं वो नॉर्मल हेयर फॉलिंग को लेकर के भी इतनी ज़्यादा मरीज है। जैसे मैं 2-3 एग्जांपल आपको देता हूँ कि हमारे पास कुछ फीमेल्स आती हैं,
वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें वो स्ट्रेटनिंग करानी है, उसके लिए कोई मेडिसिन दे दो कि बाद में बाल ना झड़े। तो मैं उनसे पूछता हूँ तो आपको ये पता है कि स्ट्रेटनिंग करानी है उसके बाद हेयर फॉलिंग होगी, तो ऐसा क्यों करा रहे हैं, आप मत कराइए। उन्होंने कहा कि नहीं सर देखो स्ट्रेटनिंग तो करानी है, आपके पास इसके बाद की कोई मेडिसिन हो तो वो दीजिए। व्हाट डज इट मीन कि हम सिर्फ अपने कॉस्मेटिक रीजन से अपने बालों को रखना चाहते हैं। इस कॉस्मेटिक रीजन के अलावा एक्चुअली में जहाँ पे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे एसी नहीं है, जहाँ पे हीटर नहीं है, वहाँ तो शायद बालों की जरूरत हो। बाकी जहाँ पे थर्मल को कंट्रोल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहाँ पे शायद बालों की जरूरत खत्म हो गई है। तो हम नॉर्मली मतलब मैं बहुत थोड़ा मतलब बहुत मेल्स को देखता हूँ, सबसे ज़्यादा जो हमारे पास डिप्रेसिव पेशेंट हैं बालों को लेकर के वो मेल्स हैं। पता नहीं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब बस ये बाल रुकने चाहिए, मैं कहता हूँ कि नहीं रुकेंगे तो थोड़ा और परेशान हो जाते हैं। मैं कहा बिल्कुल नहीं रुकेंगे, तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब कहीं और दिखा लेंगे। मैंने कहा दिखा लो, अगर कहीं से रुक जाए तो मुझे भी 3-4 साल बाद आकर के बताना। और टचवुड जैसे डॉक्टर इशिता ने बोला कि रेफरेंस करना चाहिए, मैं अपने जितने भी ऐसे पेशेंट हैं सबको रेफर करता हूँ और कहता हूँ कि अगर आपको कहीं से भी रिस्पॉन्स आए तो मुझे एक बार प्लीज बताना, तो मैं उस डॉक्टर के पास और ज़्यादा केसेस भेजूंगा। लेकिन अभी तक शायद पिछले 10 सालों में तो कोई भी ऐसा नहीं आया जो रिटर्न करके ये कहता हो कि डॉक्टर साहब मुझे वहाँ से फ़ायदा हो गया। तो हमें ट्रुथ जानना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि एक्चुअली ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या कहती है, उस बाल की ग्रोथ कैसे हो रही है। इसकी भी पैथोलॉजी में लिखा हुआ है कि एक्सिला में अगर वाइट हेयर्स आ गए बहुत कम एज में तो कुछ गड़बड़ है। बस हमें पता होना चाहिए, हमें पढ़ना पड़ेगा। आज क्योंकि टीचर्स डे है और मेरी स्टूडेंट ने आज मुझे बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए हैं। जैसे डॉक्टर श्वेता ने आज मुझे गिफ्ट किया पार्क्स की एक बुक, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन की, जो मेरी सबसे फेवरेट बुक है। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे को नया एडिशन आने वाला है, तो उसको पढ़ेंगे तो और भी अच्छा लगेगा। हमें पता लगेगा कि एक्चुअली में दुनिया में क्या चल रहा है। ऐसा नहीं कि हम पीएसएम के बिना, हम एफएमटी के बिना, हम पैथोलॉजी के बिना, हम प्रिवेंटिव मेडिसिन या जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन है सर्जरी के अलावा नहीं बच सकते। हम लोग डॉक्टर्स हैं और ह्यूमन बीइंग के डॉक्टर्स हैं, तो हमें ह्यूमन बीइंग के बारे में जरूर पता होना चाहिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इशिता। आज Thank you so much, sir. Thank you for the opportunity. दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से और हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं उनकी तरफ से आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट है, हालांकि डिजिटली है। अगर आप यहाँ पे होते तो हम आपको अच्छे से स्वागत करके और अच्छे से सर्टिफिकेट देते, पर अभी क्योंकि डिजिटली है so तो much, हम sir. आपको ये आप ईमेल कर देंगे। और मैं चाहता हूँ कि अगर हमारे प्रेसिडेंट सर हैं तो प्लीज़ अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए। डॉक्टर वाई सिंह सर। डॉक्टर वाई सिंह सर हमारे प्रेसिडेंट हैं दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के। डॉक्टर श्वेता सिंह वाइस प्रेसिडेंट हैं, मैं जनरल सेक्रेटरी। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आप सब लोगों को बता देता हूं कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऐसे लोगों को आपके सामने लाने की कोशिश करती है। शुरू से ही मेरा ये मानना रहा है कि जितना भी मेरे स्टूडेंट्स या जितने भी जो यंगस्टर्स हैं वो लेक्चर के स्टेज पे आएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ताकि लोगों को पता लगे कि बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। जैसे आज डॉक्टर इशिता ने सब कुछ बताया और बहुत सारे मैंने हेयर पे बहुत सारी प्रेजेंटेशन देखी, लेकिन जो इन्होंने सच्चाइयाँ बताई हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इन्होंने बहुत सच बातें बोली हैं, हमें अडॉप्ट करनी चाहिए और हमें ये मानना चाहिए कि सब लोगों को एक साथ मिल करके चलना पड़ेगा। डॉक्टर इशिता आपकी मदर का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ में हैं और आपके जितने भी साथी हैं वो हमारे साथ हैं, इसका तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो बहुत ही अच्छा लगा कि टीचर और टीचर की मदर हमारे साथ ही हैं दोनों लोग। और दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन के आप सब लोग एक एस्टीम्ड मेंबर हैं। मैं चाहता हूं कि बाकी जो लोग मेंबर नहीं हैं वो प्लीज़ मेंबरशिप लें और प्रमोट करें। कि हालांकि मेरे एक स्टूडेंट ने ये कहा था कि सर आप प्लीज़ मत कहा करो, क्योंकि प्लीज़ से दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन का वो थोड़ा नीचे हो जाता है। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि प्लीज़ और थैंक यू मेरा रग रग में बसा हुआ है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि सब लोगों को थोड़ा सा प्रमोट करूँ। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन से आप लोगों के जो फ्रेंड्स हैं वो भी जुड़ें, हमें और अच्छा लगे। शायद कम हो, लेकिन फिर भी हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको सब कुछ अच्छे से मिले। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो प्रेसिडेंट सर हैं, जो हमारे इंजन हैं, जो हमें खींच रहे हैं, वो आज का वोट ऑफ थैंक्स करें। डॉक्टर वाई सिंह सर। थैंक यू डॉक्टर दीपक सर। इंजन तो मैं नाम का ही हूँ,
बाकी जो आपकी मेहनत है ना वो है मेन, आपकी मेहनत तो ये आपकी टीम है ना। तो आज टीचर्स डे पर पहले तो मैं अपने होम्योपैथिक जगत के सारे टीचर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और ये ऐसी हम लोगों को पढ़ाते रहें और जिससे समाज का भला होता रहे। और आज के एक वंडरफुल लेक्चर के लिए, वास्तव में बहुत वंडरफुल लेक्चर दिया, बहुत अच्छा लेक्चर दिया है डॉक्टर राजगुरु ने। थैंक यू और सर, राजगुरु थैंक यू। राजगुरु मुझे लगता है इनके नाम के साथ ऐसे ही जुड़ा हुआ है, वास्तव में गुरु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया लेक्चर के लिए। और साथ में लेक्चर में सहयोग करने के लिए डॉक्टर श्वेता सिंह, डॉक्टर दीपक शर्मा, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और डॉक्टर दीपक शर्मा, एक अगेन आपको धन्यवाद, आपकी टीम इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करती है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और उन सब लोगों का धन्यवाद जो हमें सुन रहे हैं, हमारी सारी टीम को, हमारे सारे मेंबर्स को, क्योंकि आप सब लोग इतना फेथ लेकर के हम लोगों के साथ जुड़े हैं। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ सीख करके जाएं। इसी सेशन में हम लोग अगला एक सेशन लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट सैटरडे को, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के ऊपर। डॉक्टर यतेंद्र भटनागर हमारे साथ रहेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ शायद सबको ज़रूरत हो। ज़्यादातर आजकल बहुत सारे केसेस मिलने लगे हैं डिसलेक्सिया के भी, ADHD के, ऑटिज्म के, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो अब मिलने लगे हैं। तो डॉक्टर यतेंद्र भटनागर बहुत सीनियर होम्योपैथ हैं दिल्ली से ही, ये हमें बताएंगे कि इसमें और होम्योपैथी में क्या हम लोग प्लान कर सकते हैं। ये लेक्चर भी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव रहेगा जैसे आज डॉक्टर इशिता मैम का रहा है। और डॉक्टर इशिता मैम, हमें बस पढ़ाते रहना, क्योंकि हम सारे थोड़े कमज़ोर हैं। आप हमें सर, ज्ञान आपसे मुझे सीखना है इतना। नहीं, मैं सर, आप जितने बड़े डॉक्टर इतने हम्बल है, that is the most learning part I have learned from you. It is wonderful getting associated with Delhi Homeopathic Medical Association. Shweta is my very dear friend, and she always talks about you that इतने आप सक्सेसफुल है, इतनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस है, फिर भी आप इतने डाउन टू अर्थ और हम्बल है, so which is such a huge learning point. थैंक यू। इतना बड़ा नहीं हूँ। थैंक यू। मैंने आज अपने टीचर्स डे पे अपने सबसे पहले जो गुरु हैं डॉक्टर SP डेसर बेंगोली हैं, बहुत ही सिंपल हैं। तो मैंने सबसे पहले 7 बजे उनको फ़ोन किया। मैंने कहा सर नमस्कार। तो कहते हैं कि दीपक कितने क्लिनिक हैं? मैंने कहा सर 5 हैं। तो मैं डरता हूँ क्योंकि वो हमेशा कहते थे सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 क्लिनिक रखने। तो मैंने एकदम से कहा, मैंने कहा सर ऐसा है कि अभी 2 पे ही काम कर रहा हूँ, बाकी सब मेरे स्टूडेंट संभाल लें। तो कह रहे अच्छा ठीक है। तो जो गुरु हैं आपको उनसे एक एनर्जी मिलनी चाहिए, उनका नाम ही काफ़ी होना चाहिए। मैं पिछली बार भी ये बता रहा था कि मैं जब भी किसी केस में फंसता हूँ तो रिंग करता हूँ, फ़ोन मिलाता हूँ, और जैसे ही फ़ोन कान पे जाता है तब तक मेरा केस सॉल्व हो चुका होता है। तो एक्चुअल में ये गुरु हैं। फिर मैं उनसे हाल चाल पूछता हूँ और रख देता हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे आइडियाज़ दिए हुए हैं, उन्होंने ऐसी ब्लेसिंग्स दी हुई हैं। और गुरु हमेशा वही होता है जो हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स को बनाए रखे। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर इशिता, और खासकर आपकी मदर का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। आज हेयर पे बहुत सारी बातें क्लियर हो गई, जो थोड़ी बहुत रह गई हैं, जो आपने कहा है कि और सेशंस में आप बताएंगी। तो हम सर, जैसे कभी हम कैंसर पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। कैंसर के ऊपर अभी मैं वही कह रही थी, अगर मेरा पेपर पब्लिश हो गया तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर इट। बट कैंसर इतना पोटेंशियल है होम्योपैथी का कैंसर को ठीक करने के लिए, तो वी कैन डेफिनेटली। सर, आप प्लीज आप हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कैंसर के बारे में, कभी आपका एक कोई लेक्चर हमें रखिए ताकि हम सीख पाए इसके बारे में, कैंसर क्या है क्या नहीं है, होम्योपैथी कैसे हम हेल्प कर सकते हैं उसमें। देखो, मेरे पढ़ाने से तो बच्चे इतने बोर हो जाते हैं, वो कहते हैं कि सर कोई तो ऐसा टाइम दो जब पढ़ाया मत करो। जब आज मैं सारे स्टूडेंट मेरे लिए केक काट रहे थे, तो मैंने कहा नहीं यार थोड़ा PSM पढ़ लेते हैं, जब मेरे को बुक गिफ्ट में मिली है। तो 1-2 लाइन मैंने पढ़ी और मैंने कहा, सबने कहा कि सर आज तो मत पढ़ो। मैंने कहा नहीं, आज ही पढ़ना जरूरी है। तो मैं तो जब चाहे जब बता दूंगा, और धीरे धीरे मैं जो भी होता है मैं बीच बीच में सब कुछ बताता रहता हूँ। तो डॉक्टर इशिता, जैसे ही भी हमारा शेड्यूल होता है, क्योंकि बहुत सारे स्पीकर्स अभी वेटिंग में हैं, तो जब भी आपके लिए शेड्यूल होगा हम जरूर शेड्यूल करेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आज का सेशन एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सर, आई एंजॉयड इट अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों को नमस्कार। थैंक यू। किसी को भी कोई भी क्वेरी आए तो मुझे 9711153617 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट dhma.in पर जाकर के सारी इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके जितने भी साथी लोग हैं वो सब लोग भी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किसी टाइप की क्वेरी हो, मुझे 9711153617 पर व्हाट्सएप करें। कुछ डिले हो सकता है, कुछ मतलब एक दिन भी डिले हो सकता है आपके मैसेज का रिप्लाई होने में, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सबके मैसेजेस रिप्लाई कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। सभी लोगों को नमस्कार एंड अगेन हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू Same मैम, to you, sir. थैंक यू डॉक्टर श्वेता, Thank थैंक यू you. वाइस Thank you, सर, Dr. Shweta. थैंक यू मैम, और आपकी मदर का स्पेशल थैंक यू। नमस्कार मैम।